with our day 5 session, Activating the Knowledge and Bliss Body. On the first day, we talked about intelligence in general and what is spiritual intelligence. On the second day, we activated our physical quotient, the physical body. On the third day, we spoke about the etheric body. On the fourth day, we did about the mind body. And today, on the fifth day, we will talk about activating the knowledge and the bliss body, achieving higher SQ levels, right? So we start with this today. So this is our Pancha Koshas, which we have been discussing. Our Anamay Kosh, which we have discussed on the second day, the physical body, right way of sleeping, right way of eating, and all those stuff. Then Pranamay Kosha, where we talked about the nadis, the aura, the chakras, and how they affect our physical and mental bodies. Then yesterday in Manomay Kosha session, we spoke about conscious mind, subconscious mind, ego, intellect, and how we can program our subconscious mind and achieve what we want to achieve in life. And today we are going to talk about Gyanmay Kosha and Anandamay Kosha. We'll talk about these two bodies, and when we achieve these two bodies, because till we are in the domain of Manomay Kosha, we are still like at a normal level of SQ. But the moment we reach Gyanmay Kosha, our SQ reaches to a very high level. Like, we go deep into our mind, we start working with the higher mind. So, and when we start working with the higher mind, we then move to our final body, which is the Anandamay Kosha, which is the bliss body. Right. So today we are going to talk about Dhyanmay Kosh and Anandmay Kosh, how we can achieve the higher mind and get the powers of the bliss body. Because as I started my session, I shared the definition of spiritual intelligence, and it said about bringing equanimity, internal and external, bringing bliss in you. So that is all about Anandamay Kosha. So today we are going to talk about that. Yesterday we spoke about the 4 dimensions of the mind: intellect, ego, mind. These three that the fourth dimension, chitta, consciousness, I'm going to take tomorrow, which is today. So today we are going to go deep into chitta. What is chitta and how we can access it, how we can empower it. Because chit or consciousness, it comes in the higher mind. It comes in the higher level mind. So what is chit? Chit is the mind field. It is the mind field from which buddhi, ahankar, and manas emerges. Chit is the mind field from which buddhi, ahankar, and manas emerges. It is pure consciousness. It is intelligence. When I spoke about spiritual intelligence, I told all of you that spiritual intelligence does not operate at the level of the brain. It operates beyond it. It operates at the level of consciousness. It operates at the level of chitta. Got it? So this is where our spiritual intelligence operate at. Today we are going to learn all about these. Now, what is Chitta? Chitta is the unconscious storehouse or reservoir of all impressions, habits, desires, attractions, aversions, memories, identities. There are so many things in our life we don't get answer to. सडनली कोई हमें मिल जाता है, पहली बार मिलते हैं, बट पता नहीं इतना अच्छा लगता है और ऐसा फील होता है जैसे जन्मों का कोई रिश्ता है इसके साथ में. राइट और रॉन्ग? होता है कि नहीं होता है? होता है ना. हम मिलते हैं और लगता है पता नहीं कितने जन्मों का इसके साथ रिश्ता है. वी डोंट फील दैट वी आर मीटिंग दैट पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन लाइफ. सिमिलरली कोई हमें मिलता है और उससे मिलके बहुत इरिटेशन हो जाता है, बेचारे ने कुछ किया भी नहीं तो भी लगता है जैसे कितनी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, स्टार्ट फीलिंग सफोकेटिंग इन दैट पर्सन्स प्रेजेंस. होता है कि नहीं होता है? होता है. क्यों होता है? बिकॉज हमारे चित्त में ये सारी मेमोरी स्टोर्ड है.
पता नहीं कौन से लाइफ में, कौन से इंटरेक्शन में उस पर्सन के साथ में हमारा कोई एवर्जन हो गया है, या हमारा कोई बॉन्डिंग क्रिएट हो गई है जो हमारी मेमोरी में रह गई है। और अगर हमारा गुड इंटरेक्शन रहा है तो हमारी मेमोरी उसके बारे में अच्छा फील करती है, एंड व्हेन दैट सोल कम्स इन फ्रंट ऑफ अस वी स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट। बट अगेन अगर हमारा memory उसके लिए अच्छा नहीं है, then what happens? We don't feel good, we feel irritated, we feel suffocated, we just dislike that person unknowingly, we don't know, we think also पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कभी तो इसने कुछ मुझसे बुरा कहा नहीं, but somehow I feel so much negative about him. So this happens because all these memories are stored in the chitta. So chit is the real mind power, but most of the power is stored in the unconscious part of the chit as dormant seeds. Our purpose is to awaken these dormant seeds. सो हमारा जो चित्त है ना वो बिल्कुल सुप्त अवस्था में है, स्लीपिंग कंडीशन में, डॉर्मेंसी में है, एंड देयर इज अ ह्यूज पावर दैट इज लाइंग देयर इन दिस हायर माइंड, इन दिस हायर इंटेलिजेंस, इन दिस कॉन्शियसनेस. So our purpose is to awaken it, and today we are going to learn how to awaken it. एक एवरेज ह्यूमन बीइंग ओनली 4 to 5% ऑफ माइंड पावर यूज कर पा रहा है, एंड आइंस्टाइन हु वाज द वर्ल्ड्स जीनियस ही यूज्ड टू द एक्सटेंड ऑफ ओनली 8%. सो जस्ट इमेजिन कितना बड़ा पावर हमारे पास में एक स्लीपिंग जायंट के रूप में है, और अगर हम उसको अवेकन कर दिए इवन अ स्मॉल टिनी मिनी पार्ट ऑफ इट आल्सो, देन व्हाट वी कैन क्रिएट इन दिस यूनिवर्स. हम किस लेवल तक जाएंगे हमें खुद को अंदाजा नहीं है, एंड दिस इज वेयर द पावर ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस लाइज. So we'll understand Chit in more detail now. What is Chit? Chit is like a lake. अब कोई लेक है, लेक कैसा होता है? जनरली लेक बहुत शांत होता है, सीरीन, शांत, राइट? बट अगर उस लेक में बहुत लहरें हो, बहुत रिपल्स हो, सो विल यू बी एबल टू सी द बॉटम ऑफ द लेक? यस और नो? विल यू बी एबल टू सी द बॉटम ऑफ द लेक? अगर लेक में बहुत रिपल्स हो तो दिखेगा हमें उसका बॉटम? नो. अगेन अगर लेक बहुत मडी हो, डर्टी हो, बिल्कुल उसमें गंदगी हो, तो हमें बॉटम दिखेगा? नो. सो इफ द लेक इज मडी or if the lake is full of ripples, we won't be able to see the bottom. Similarly, चित्त, हमारा चित्त भी एक लेक के समान है, शांत, सीरीन, ब्यूटिफुल. बट अगर उसमें वो मटमैला हो जाए, वो डर्टी हो जाए, मडी हो जाए, और अगर उसमें बहुत सारे रिपल्स आ जाएं, तो क्या होगा? हमें बॉटम नहीं दिखेगा. और बॉटम में क्या है? बॉटम में हमारा रियल सेल्फ है, हमारी सोल है, हमारी आत्मा है, जिसमें वो रियल पावर्स है. वी वोंट बी एबल टू एक्सेस द रियल पावर. और ये रिपल्स क्या है? ये रिपल्स है फ्लक्चुएशंस ऑफ अ माइंड. डू यू नो हाउ मच वी थिंक इन अ डे? कितने थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं पर डे? कैन एनीबडी कैन हेल्प मी विद दैट? कितने थॉट्स पर डे आते हैं हमारे दिमाग में? कैन एनीबडी हेल्प मी? इट्स अराउंड 60,000 thoughts per day. Just imagine how many thoughts are coming in our mind every minute and every second. And it's for an average human being. जो ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में रह रहे हैं, जो ज्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनके माइंड में और भी थॉट्स आते हैं. तो जस्ट इमेजिन कि इतने थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं, इतना फ्लक्चुएशंस हमारे माइंड में हो रहा है, तो क्या हमारा चित्त शांत रह पाएगा? विल बी एबल टू reach the bottom of our chit and encounter our soul and take the power of the soul in action? Will be able to do that? Not possible. Again हमारा चित्त क्या हो गया? मडी हो गया है. कैसे मडी हो गया हमारा चित्त? कैसे मडी हो गया? we discussed about that yesterday. कि हम क्या कर लेते हैं? हम एक चश्मा पहन लेते हैं. कौन पहनता है वो चश्मा? हमारा ईगो एक चश्मा पहन लेता है, एक कलर्ड ग्लास. और इस दुनिया को हम कैसे देखते हैं? हम इस दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे कि वो दुनिया है. हम दुनिया को देखते हैं उस कलर्ड ग्लास के थ्रू, राइट? सो दैट कलर्ड ग्लास इज मेकिंग आवर वर्ल्ड मडी, राइट?
So we are not able to go into the depth of our chit because of two prime reasons. One is fluctuations that is happening in our manas all the time, fluctuations of our thoughts, and second, because of the muddiness that has been created by our ego. हमारे ego ने जो चश्मा पहना दिया है और हमारे मनस जो एक फ्लक्चुएशंस क्रिएट कर रहे हैं, उसके कारण इतना रिपल हो गया, इतनी गंदगी हो गई है कि वी आर नॉट एबल टू रीच एट द डेप्थ ऑफ आवर चित्त. Until the time we are not able to reach the depth of our chit, till the time our chit is not serene, it is not calm, it is not settled, we won't be able to reach the real I. We won't be able to reach the real self who we are. And all our powers lie in our real self. We have got infinite powers. I shared with you on the first day that we are made of trillion cells, and each cell has the power of a supercomputer. So we are, in short, 1 trillion supercomputer in one human being. 96% of our manpower goes unused, was wasted. 97 of our DNA has got converted into junk DNA. Why? Because we are not able to reach to that real I. We are not able to understand who we really are. We don't know where our instruction manual lies. हमने अभी तक कभी अपने instruction manual को पढ़ा ही नहीं है. अभी तक हमने अपने program को activate ही नहीं किया है. हम deliver तो हो गए हैं, but कभी install हुए ही नहीं. Are you with me on this? Do you agree or don't you agree? Do you agree that हम डिलीवर तो हो गए बट इंस्टॉल नहीं हुए हैं? इतना सारा पावर्स है हमारे अंदर में, इतना सारा पावर्स है, बट इट जस्ट गोज वेस्टेड. व्हाई? बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू यूज इट. सो वी लर्न सम वेज जिससे हम एटलीस्ट कुछ तो यूज कर पाए. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप थोड़ा इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ इट को भी अगर आप कर पाओगे ना, sky is the limit for you. Sky is the limit for you. You can achieve all achievements, whatever you want, but always there is one line, that is pure intention. हमेशा शुद्ध भावना के साथ. अगर मैलिफाइड इंटेंशंस है, then this path is not for you. Spiritual intelligence is only for those soul who have pure intention, who are good human beings, who want good for themselves as well as good for others, who believe in the win-win philosophy. People who believe in win-lose philosophy, people who want to trample and crush others, this is not the path for them. Then take some other path, but there is no guarantee for that path. But this path, yes, I take the guarantee that if you move ahead in this path, आप खुद imagine नहीं करोगे where you have reached. And सबसे best path क्या है? You're starting really early. All of you are in your 20s. I started my path as early as you, and I got my guru when I was like, I guess 27, 28. I got my guru, and I feel so blessed that at such a young age I could move on, and I'm able to achieve so much in life. When I take sessions for people who are like, in 40s, 50s, and 60s, then what happened? The only sad feeling they have is we are getting it so late. We have missed so much in life. But I always tell them that it's never too late. It's never too late. Yeah, I just got a message that my voice is not that clear. Please let me know whether it's perfect for you. You can all hear me. Just let me know. Just let me know whether my voice is clear to you or not. Yeah, it's perfect. Perfect. So Asta, you need to check at your end some issues at your end. Okay. So according today we are going to get in touch with a lot of our scriptures from Patanjali Yoga Sutras, from Bhagavad Gita, like all these divine scriptures we are going to refer to understand in depth about spirituality. For people who belong to different faith, don't worry. Don't worry. These knowledge are divine knowledge, irrespective of which faith it belongs to. I'm sure whatever faith you belong to, उसमें भी ये सारी बातें होंगी, maybe in a different form. So whatever you're learning from here,
in here from me, you just make a note and get in touch with your experts, and they will guide you what's there in your religion, right? But don't reject it. Don't reject it, because what I'm talking to you right now is something very, very deep, something which is going to make amazing changes in your life. So just because it has been picked from scripture, which is from a faith which is not yours, does not mean you should reject it. In fact, you should check it from your scriptures as well, and then you will find that there's so much of knowledge which is so common, because human beings ultimately are the same. I don't get changed if I belong to some other faith, right? I'm born as a Hindu. Had I been a Muslim or a Christian, I would not have been any different, right? I'd have been the same person with the same heart, with the same mind, the same chakras and the same nadis, and the same conscious mind and the same subconscious mind and the same chitta also, right? So we all are the same. It's just that we use different terminologies, right? So here I'm going to use a lot of reference to the scriptures just to make you understand better, right? So according to sage Patanjali, in his Patanjali Yoga Sutra, he said, Yogash Chitta Vritti Nirodh, meaning the purpose of yoga is stop the disturbances, that is vrittis, in the mind field, that is chitta. So our purpose is to, if we want to encash the power of the chitta, if we want to know the real I, if we want to get the power of the real I, then what we need to do? We need to stop the fluctuations that is happening in the chitta. We need to remove the muddiness that is there in the chitta. And that can be possible only through yoga. Now, what is yoga? Now, what is yoga? We all know that we know all you know yoga as yogasanas, but yogasan is one part, one small part of yoga. I'll come to that also in probably the end part of my session. Yogasan is a small part of yoga. Yoga, what is yoga? Yoga is the merging of finite with infinite is yoga. The union. For example, you have got a mobile, right? So what do you do with your mobile every day? You put it on charge, right or wrong, you put it on charge. So what happens when the mobile is put on charge? The mobile battery gets full. So the moment you plug it on, the moment you plug it on, the mobile charge becomes full. And the mobile is ready to be used full on, because if the charge is not there, you won't be able to use the mobile. So similarly, we human being, we also need to get connected with our superpower and charge ourselves. Because what is happening every day, we are depleting our energy. We're doing so much work, we're doing so much running around, there's so much of negativity outside, there's so much of so many things happening in our life, which is depleting the energy from us. Slowly, slowly it's going. And you will realize in the morning when you wake up, you're so calm, fresh, you're so energetic. And by the night, when you go to bed, you're so tired. Yes or no? It happens with you. Morning, you're so charged. And night, when you go to sleep, you're so tired. Yes or no? Yes, yes. We get tired. Why? Because throughout the day we have worked so much like a mobile. Morning we charge, by evening it's discharged. Similarly, morning we get up, after sleep we are charged. Evening we get discharged. And this is happening with us. We are getting discharged. And tomorrow morning we are lesser charged. Day after tomorrow we are even lesser charged. And by the time we hit our 50s, we are all dead. लाइफ में कोई एंथुजियाज्म नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, बस जीने के लिए जी रहे हैं. Do you want yourself to be like that, getting depleted every day, or you want that you get refreshed every day? You want that और एनर्जी आपके अंदर आते जाए, आपका tomorrow today से ज्यादा energetic हो. Do you want that? Do you want that? Yes, yes, we all want that कि हमारा कल जो है वो आज से better हो. Our tomorrow is better than today. We are more energetic, we are more charged tomorrow than what we are today. So वो charging के लिए हमें क्या करना होगा? हमें कहीं plug in होना होगा, right or wrong? We need to get attached to a powerhouse, to a powerhouse. Then who is that powerhouse? Powerhouse is that ultimate energy जिसको हम अलग अलग नाम देते हैं. क्रिश्चियंस गॉड कहते हैं, क्राइस्ट कहते हैं, मुस्लिम्स अल्लाह कहते हैं, मोहम्मद कहते हैं.
हिंदू उसे भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, शिव कहते हैं, जैन तीर्थंकर कहते हैं, बुद्ध गौतम बुद्धा कहते हैं. सो नेम्स आर ऑल डिफरेंट बट दे आर ऑल द सेम. They are one divine energy whom we perceive differently in different ways, the way we want to. So it's fine. Whatever gives you happiness, perceive in that way, right? But ultimate, what is required that you should get connected to that energy. So connection with that energy is what is yog. What is yog? Yog means union. Yog means union. Union of this infinite body with that infinite divine power. Are you with me? Did you understand what is yog? What is yog? Could you understand? So when we are connected with that divine source, we live in divinity, in soul consciousness. But when this connection gets broken, we shift into body consciousness. So we all need to stay connected through योग. हमें connected रहना है उस divine source of power के साथ. जैसे हमारा एक बैटरी बैंक है ना, हम क्या करते हैं, मोबाइल को कभी भी डिस्चार्ज होने देते हैं, या तो कोई प्लग इन कर पाए तो प्लग इन कर लिया, नहीं तो बैटरी बैंक लिया और उससे अपने मोबाइल को कनेक्ट कर दिया, राइट? तो सिमिलरली हमारा भी बैटरी बैंक वही है, वो पावर हाउस है, दैट डिवाइन पावर, एंड वी नीड टू स्टे कनेक्टेड विद दैट डिवाइन पावर विद दिस योग. हम अगर उनसे कनेक्टेड रहेंगे तो हमेशा एनर्जाइज रहेंगे, पावरफुल रहेंगे, and we can achieve what we want to achieve. We can lead the life of our dreams. So yoga is the union of this finite with that infinite. Now, what are the different forms of yoga? First is karma yoga. Karma yoga. Second is bhakti yoga. Third is Gyan Yoga, and fourth is Raj Yoga. Have you ever heard these terminologies before? Karma Yoga, Bhakti Yoga, Gyan Yoga, Raj Yoga. Today we are going to discuss in great depth कि इसको practically in our day-to-day life, how we can implement in our life, right? Then only we can ensure the total, because we need to establish a lease line. हमें वो नहीं करना है कि भाई हॉटस्पॉट कर दिया, कनेक्ट हुआ, फिर डिस्कनेक्शन हो गया, नेटवर्क कभी अच्छा है कभी खराब है. नो, we have to establish a leased line, a dedicated line. Do you want to establish a dedicated leased line with the infinite power, divine power? Do you want to do that? और यू वांट कि भाई कभी कर लिया, मॉडेम से हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया, कभी नेटवर्क के रेंज में आए तो कनेक्ट हो गया तो हो गया, फिर डिस्कनेक्ट हो गया, फिर कहीं नेटवर्क आया तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ. और यू वांट कि एक लीज लाइन, डेडिकेटेड लाइन मेरी सेट हो जाए जो 24/7/365 into the number of years I am on this earth, वो चलती ही रहे. Do you want this? A lease line connection? Yes. So by the help of these four parts, we can ensure that undisturbed lease line connection with that infinite power, which will give us all that we want in our lives. So सबसे पहले कर्म योग. What is this कर्म योग? So कर्म योग को समझने के लिए पहले हमको क्या समझना होगा? कर्म. हम कई बार सुनते हैं मेरे अच्छे कर्म थे, मेरे खराब कर्म थे, इसके तो कर्म ही खराब है, इसका तो यही अच्छा है. We keep listening and hearing, but then what is this कर्म? कर्म जो है वो हमारे लाइफ का बेसिस है, लाइफ का बेसिस है. हम जो भी लाइफ लीड कर रहे हैं, इट इज अ रिजल्ट ऑफ आवर ओन कर्मास which we have accumulated over all the lives that we have led. There are a lot of people who are asking me, ma'am, is there a life before? Do you believe in past life and all the stuff? Yes, I do believe in, and this is scientifically proven that there are past lives. Lot of books are already there, and if you want, on my YouTube channel, there is a video also on life after death, where you can, like, actually experience the entire journey
what happens when we leave our life and how that incarnation happens and all those things. So you can go through that. But yes, there is a life before us and there will be many more after. And this is all because of the karmas that we have. Our present is a result of our past karmas, not just this life, but many lives that our soul has already taken. And our future is the result of the present karmas. आज हम जो कर रहे हैं उससे हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा और जो हमने कर लिया उससे हमारा प्रेजेंट डिसाइडेड है. So by any chance you are not happy with your present moment, by any chance you feel that you deserve much better, then what do you need to do? You need to change your, and you want to change your future. So what do you need to do? You need to change your present karmas, because your future is decided by your present karmas. तो अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर बदले तो आपको प्रेजेंट को बदलना होगा. और अगर आप बहुत खुश हो अपने प्रेजेंट से और आप चाहते हो कि जैसा आपका प्रेजेंट है वैसे आपका फ्यूचर है, तो जो आपने अभी तक किया है वो सुपर डुपर किया है. कीप कंटिन्यूइंग विद दैट, डोंट रिलैक्स. Because if you relax, if you don't continue with what you're doing, then you'll go down. And if you go down, then your future will get affected, right? So we'll understand karmas now. What are these karmas? So karmas, for explaining karmas, I'll take the example of a battlefield, right? So what happens in a battlefield? There's a warrior. एक योद्धा होता है, वॉरियर होता है. और वो वॉरियर क्या करता है? वो वॉरियर बैटलफील्ड में जाता है और बैटलफील्ड में जाने के पहले वो क्या करता है? उसके पास एक कलेक्शन ऑफ एरोज होते हैं, तीर होते हैं, राइट? तो वो कलेक्शन ऑफ तीर में से वो कुछ तीर को सिलेक्ट करता है डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर ही हैज स्ट्रैटेजाइज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर बैटल. जैसे उसके ओपोनेंट्स है, किसके साथ उसको फाइट करनी है, उसका क्या स्वॉट है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसके हिसाब से वो अपनी पूरी युद्ध की रणनीति प्लान करता है. उस युद्ध की रणनीति के लिए उसको जो जो एरोज की, वेपन्स की आवश्यकता होती है वो उनको अपने कलेक्शन से चूज कर लेता है. चूज करके वो क्या करता है? वो डाल देता है अपने तरकश में. He puts it in his tarkash and then he goes in the battlefield. And when he faces his opponent, what he does? He takes out one arrow from the tarkash and he puts it on his bow. अपने कमान में उसको लगा देता है. And then when the moment comes, when he is facing his opponent and fighting him, he releases that particular arrow, right? And when he releases that arrow, then he has no choice. The arrow is going to go. In fact, the rule of the battlefield is कि एक बार तीर प्रत्यंचा पे चढ़ गई तो वापस नहीं उतरती. तो एक बार अगर उसने अपने ओपोनेंट को टारगेट करके प्रत्यंचा पे तीर को चढ़ा दिया, तब उस योद्धा को अपनी तीर को छोड़ना ही पड़ता है. In case he changes his mind, then what best he can do? He can only change the direction and the intensity with which he releases his arrow. तीर छोड़ने की डायरेक्शन को और उसके इंटेंसिटी को वो खाली चेंज कर सकता है. उसके अलावा वो और कुछ भी नहीं कर सकता. He has to release that arrow. एक बार वो तीर प्रत्यंचा पे चढ़ गई. Are you with me? Are you clear about how a warrior handles his war? Are you clear? Quickly, let me know. Wonderful. So we are also like yodhas in this battlefield. हम कोई योद्धा से कम नहीं है. जीवन जीना कोई युद्ध से कम नहीं है. There are so many ups, so many downs, so many opponents. मतलब there are so many people in our team. There are so many people in opposing team. So we are all yodhas. And like yodhas, when we decide that yes, we will take birth and we will go down, what we do? We write our life script. Yes, we write our own life script. हम खुद लिखते हैं. वो मेरे लाइफ आफ्टर डेथ वाले वीडियो को जब आप देखेंगे ना तो बहुत डिटेल में आपको समझ में आएगा. In fact, I've got another video, I create my destiny. Watch that also, you love it. तो उसमें भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया कि किस तरह से हम अपनी डेस्टिनी को लिखते हैं. So we write a destiny, right? Before taking birth. And when we write a destiny, what happens?
जैसा कि एक योद्धा अपनी रणनीति प्लान करता है, वैसे हम जब अपनी डेस्टिनी प्लान करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हमारे कलेक्शन ऑफ कर्म है, कलेक्शन ऑफ कर्म जो हमने पता नहीं कितने जन्मों से इकट्ठा किया है। बट क्या सारे के सारे कर्म को लेके हम इस लाइफ में आए हैं? नो, हम सारे कर्म को लेके इस लाइफ में कर्म को ही लेके आए हैं। तो जो कलेक्शन ऑफ कर्म है उसको कहते हैं संचित कर्म और एक्यूमुलेटेड कर्मास, राइट? बट अकॉर्डिंग टू आवर लाइफ स्क्रिप्ट दैट वी हैव रिटन, हम सिर्फ उसमें से कुछ कर्म को सिलेक्ट करते हैं। सो वो जो कुछ कर्म है वो है हमारे प्रारब्ध या अलॉटेड कर्मास। सो विद दैट प्रारब्ध, संचित कर्मा इज द होल कलेक्शन ऑफ कर्मास, बट वो सबको हम लेके इस करंट लाइफ में नहीं आए हैं। हम इस करंट लाइफ में खाली कुछ कर्म को लेके आए हैं। जैसे कि वो योद्धा कुछ ही वेपन्स को सेलेक्ट करता है बैटलफील्ड में जाने के लिए, अपने पूरे स्टोर हाउस को लेके नहीं आ जाता। वैसे हम अपने पूरे कर्म को स्टोर हाउस को लेके नहीं आए हैं, उसमें से हम कुछ कर्म को लेके आए हैं, विच इज प्रारब्ध। नाउ आफ्टर कमिंग ऑन दिस अर्थ, every day we are facing situations, we are facing situations to need to get activated. Like a yodha, we need to take out one arrow from our tarkash and put it on our प्रत्यंचा। तो हर मिनट हम अपने एक एक कर्म को एक्टिवेट करते जा रहे हैं, क्रियायमान करते जा रहे हैं। एंड जैसे हम कर्मों को क्रियायमान करते हैं, जैसे एक योद्धा अपने तीर को छोड़ता है, तो क्या होता है? सामने वाला ओपोनेंट शांत बैठता है क्या? नेवर। वो ओपोनेंट भी एक और तीर सामने से छोड़ता है। सिमिलरली, जैसे ही हम एक कर्म को रिलीज करते हैं, एक कर्म को एक्शनेबल बनाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, एक और कर्म रिटर्न में सामने से आता है, विच इज कॉल्ड आगामी और एक्शनेबल कर्मास इन फ्यूचर। Are you clear? Are you clear? Quickly let me know. Are you clear with me? You're with me, you're understanding it. So what happens? So what happens? अब ये आपको समझ में आ गया कि हमारा कलेक्शन ऑफ कर्म है विच इज कॉल्ड संचित कर्म, उससे कुछ कर्म को लेकर हम इस लाइफ में आ रहे हैं विच इज प्रारब्ध। अब इस प्रारब्ध में से हर मिनट जब हम एक एक लाइफ की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो हम उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, और जैसे हम एक कर्म को एक्टिवेट करके रिलीज करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से एक और कर्म इन रिटर्न हमारे पास वापस आ जाता है, विच इज द आगामी कर्म। नाउ संचित कर्म एंड प्रारब्ध कर्म वेरी इजी टू हैंडल, बिकॉज हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है अपने कर्मों को रिड्यूस करना। वी हैव टू रिड्यूस आवर कार्मिक बैगेज, दिस इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ। जितना हम अपने कार्मिक बैगेज को रिड्यूस करेंगे, उतनी हमारी लाइफ उतनी ब्लिसफुल होगी, उतनी उतनी अमेजिंग होगी, हम उतने लकी होंगे। हम देखते हैं ना, कई लोग भी थिंक ओ माय गॉड इज सो लकी, हर चीज इसकी लाइफ में परफेक्ट है, बेस्ट है, एवरीबॉडी लव्स हिम, इज सच अ ग्रेट स्टूडेंट, नाउ इज प्लेस्ड इन द बेस्ट ऑफ द कंपनी, इसकी पैकेज इतनी अमेजिंग है, ओ माय गॉड इज गॉट सच एन अमेजिंग गर्लफ्रेंड हु इज गोइंग टू मैरिड वेरी सून, ब्ला 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 ब्ला, everything in his life is so good. Why? Because his karmic baggage is very less. और वही एक और कोई इंसान है जिसके लाइफ में हर चीज गड़बड़ है। He's born in a very difficult environment. He's struggling with his life. Like everything in his life is haywire. Why? Because इसके karmic baggage बहुत हाई है। तो कुछ नहीं, हमें क्या करना है? हमें अपने कार्मिक बैगेज को रिलीज करते जाना है। जितना जल्दी हम उसे रिलीज करते जाएंगे, हम उतने फास्ट अपने ड्रीम लाइफ की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। तो संचित एंड प्रारब्ध कर्म इज वेरी इजी टू बी रिलीज्ड व्हेन वी गो ऑन अ गुड पाथ, व्हेन वी डू गुड थिंग्स। एंड आज जो हम जितने भी बातें करेंगे, वो सबसे संचित और प्रारब्ध कर्म बहुत फटाफट रिलीज हो जाता है। बट जो क्रियायमान कर्म है, क्रियायमान कर्म जो है, वो एक बार जो प्रारब्ध कर्म से क्रियायमान बन गया, प्रत्यंचा पे चढ़ गया, तो एज द लॉ ऑफ वॉरफेयर गोज, उसे रिलीज करना ही पड़ता है। देयर इज नो चॉइस। तो फिर क्या होगा उस सिचुएशन पे?
what best you can do in that situation. By doing good deeds हम क्या कर सकते हैं, हम उसके इंटेंसिटी और उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. मेरा वो कर्म एक्टिवेट हो गया है जिसके हिसाब से मुझे एक रोड एक्सीडेंट फेस करना होगा और मेरा ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, मैं कोमा में चला जाऊंगा, राइट? बट there is a catch. If I do good deeds, then what can happen? Then this can get reduced. Accident to hoga because that karma has to become active. Nobody can stop. This is as per law of karmas. But what I can do is I can make it better. एक्सीडेंट होगा बट उतना सीरियस नहीं होगा. मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा बट कोमा में नहीं जाना पड़ेगा. हल्की फुल्की खरोच आएगी या मे बी एक माइनर सा फ्रैक्चर होगा एंड आई गेट डन, आई एम सॉर्टेड, आई एम टोटली सॉर्टेड, राइट? सो कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि मैम हमारा भाग्य तो फिक्स है, हमारा हर चीज तो फिक्स है, अब ये सब करके क्या फायदा, क्या रिजल्ट मिलेगा? तो रिजल्ट ये मिलेगा कि नथिंग इज फिक्स्ड इन आवर लाइफ. जो भाग्य लिखा था वो भी हमने लिखा था एंड हर मोमेंट हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं. कैसे बदल सकते हैं? गुड डीड्स करके. अगर हम सत्कर्म पे चल रहे हैं, अगर हमारे इंटेंशंस प्योर है और अगर हम स्टेट ऑफ ब्लिस में हर समय जी रहे हैं, एक समभाव में जी रहे हैं, अगर हमारा स्पिरिचुअल कोशेंट बहुत हाई है, तो क्या होगा? हम अपने भाग्य को रीराइट करते जा रहे हैं हर सेकेंड. जो आज हमारे साथ अच्छा नहीं है वो कल अच्छा हो जाएगा. नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, एवरीथिंग इज चेंजेबल. नाउ विच डायरेक्शन इट चेंजेस डिपेंड्स ऑन व्हाट कर्मास आर यू डूइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. इफ यू आर डूइंग गुड डीड्स देन इट इज changing in a positive manner. If we're doing bad deeds, it's changing in the negative manner. Plain and simple. Did you understand this? Clear? Clear? So let's move on. So what is our target? Our target is to limit the consequences of क्रियामान कर्म. जो क्रियामान कर्म है, मतलब मुझे कोमा में जाना था, मुझे कोमा में नहीं जाना है. हल्की सी खरोच खा के मामले को निपटा देना है, शूली का शूल बनाना है, राइट? एंड अवॉइड क्रिएशन ऑफ आगामी कर्म. और मुझे सारे कर्म इस तरह से करने कि रिवर्स में, इफेक्ट में, कॉज एंड इफेक्ट. हर कर्म एक कर्म को पैदा करता ही, एक या अनेक कर्मों को पैदा करता ही करता है. तो मुझे ऐसे कर्म करने हैं कि रिटर्न में जो कर्म हो वो सब अच्छे कर्म हो, वो सब मुझे सपोर्ट करें. वो ऐसे कर्म नहीं हो कि मेरे कार्मिक बैगेज को बढ़ाएं. इनफैक्ट ऐसे कर्म हो जो मेरे कार्मिक बैगेज को रिड्यूस करें. डन? सो दिस इज आवर टारगेट. नाउ another thing that we need to understand really well, we are all made of three gunas. Three gunas सुना होगा आपने, तमोगुण, रजोगुण एंड सतोगुण. हम तीन गुण के बने हैं. एंड जो भी रिजल्ट, कर्मों का जो रिजल्ट होता है ना, वो ये तीन गुण के आधारित पे होता है. एंड गुण एट द लेवल ऑफ इंटेंशन, राइट? तो क्या है ये तीन गुण? तमोगुण. तमोगुण क्या है? तमोगुण है मैलिफाइड इंटेंशंस, प्लेन एंड सिंपल. हम कोई भी काम इस इंटेंशन के साथ करते हैं कि दूसरे को हार्म हो, दूसरे को तकलीफ हो, दूसरे परेशानी में आ जाएं, राइट? तो वो क्या है? तो तमोगुणी कार्य है, वो तमोगुणी कर्म है. और इसका जो रिजल्ट है ना, बहुत खराब मिलता है. और ये इससे जो कर्म जो हमारे कार्मिक बैगेज को बढ़ा देता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, इसे तो हमें करना ही नहीं चाहिए. वी शुड नेवर डू एनी कर्मास विच इज मैलिफाइड इंटेंशन के साथ में, दूसरों को दुख देने के हिसाब से, दूसरों को हर्ट करने के हिसाब से. क्योंकि जब हम ये करते हैं उस समय तो हमको एक मे बी एक ईगो सेटिस्फैक्शन हो रहा होता है, बट हम ये रियलाइज नहीं करते कि ये कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस से हमारे जीवन में आएगा और तब हमें कितना दुख देगा इसका अंदाजा भी हमें नहीं है. सो नाउ फ्रॉम नाउ ऑन, बिफोर डूइंग एनी सच डीड्स, थिंक ट्वाइस. आई एम श्योर द मोमेंट यू थिंक ट्वाइस you'll stop yourself. Don't do anything with bad intentions. Next is Rajogun. Rajogun is
actions which are done with selfish intention. खुद के अपने लिए, money, power, status, ego, like all these things. Yes, it is we need to earn money, we need to वगैरह, ये सब जरूरी है, हमें अचीव करना है, बिकॉज इस संसार में आए हैं तो हमें तो करना ही पड़ेगा ना, हमें तो करना ही पड़ेगा। बट हमेशा इस बात का ध्यान रखना, मैं कभी नहीं कहूंगी कि पैसा मत कमाओ, यस कमाओ, बिकॉज आप वो करने के लिए आए हो, इतनी पढ़ाई कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? ताकि अच्छा पैकेज कमा सको, अच्छी क्वालिटी लाइफ लीड कर सको, कल को आपकी शादी होंगी, बच्चे होंगे, आपकी फैमिली लाइफ बहुत हैप्पी हो, सोसाइटी में आपका बहुत नाम हो, राइट? तो ये सब करना, लेकिन करने के बाद हमेशा इस बात को याद रखना कि ये सब करने के बाद मैं वापस गिव बैक क्या कर रहा हूं। और जब आप गिव बैक करने लग जाओगे ना, तो फिर सब सेटल हो जाएगा, देन इट डज नॉट मैटर। सो हमें रजोगुण तो करना ही है, हमें तमोगुण बिल्कुल भी नहीं करना है, रजोगुण करना है। बट रजोगुण करने के टाइम हमेशा हमें इस बात को ध्यान रखना है कि वी हैव टू रिपे बैक, सिर्फ अपने लिए हर चीज नहीं। अगर मैं कमाने लगा खूब, अगर मेरी 1 करोड़ की पैकेज हो गई, तो उसमें से कुछ ही सकता हूं ना, बांट ही सकता हूं, और जरूर बांटू, राइट? फिर फाइनल हमारा क्या है? सतोगुण। सतोगुण आर डीड्स डन बाय वर्च्यू इन हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। जब हम राइटियसनेस का पाथ लेके जो डीड करते हैं, उसको हम सतोगुण कहते हैं। और इस कैटेगरी में जब हम कोई कार्य करते हैं तो कर्म हमें नहीं लगता, उसे कहते हैं अकर्म, तब वो कर्म नहीं लगता। तमोगुण में जब हम कार्य करते हैं तो विकर्म होता है, जो हमें बहुत हाई कार्मिक बैगेज लगते हैं। रजोगुण में अगर हम होके कोई कार्य करते हैं तो हमें कर्म लगता है, बट दे आर लाइक ओके, दे आर ओके। बट सतोगुण में जब हम रह के कार्य करते हैं तो हम अकर्म की श्रेणी में आ जाते हो, कर्म हमें नहीं लगता। तो अब हम समझेंगे कि कैसे हम रजोगुणी कर्म को भी हम सतोगुणी के कैटेगरी में ले जा सके। डू यू वांट टू नो दैट कि हम अपने लाइफ के सारे एस्पिरेशंस को तो पूरा करें, बट इस तरह से पूरा करें कि हमें कर्म दोष ना लगे, इस तरह से पूरा कि कर्म हमारे लिए अकर्म हो जाए, राइट? सो वी विल डू दैट। So this is from Bhagavad Gita. Karmano yapi bodhyam bodhyam cha vikarmana अकर्मणश्च बोध्यम गहना कर्मणो गति। कि भाई कर्म तो हमें करना ही है, लेकिन विकर्म हमें कभी नहीं करना, और अकर्म जो है वो हमें करना है, क्योंकि वो हमें आगे लेके जाएगा। सो अब रूल्स क्या है? अब हम कैसे अपने रजोगुणी कर्म को हम सतोगुणी अकर्म में कन्वर्ट करें, हम किस तरह से, किस इंटेंशन के साथ हम कार्य को करें जिससे हमारा रजोगुणी कर्म भी सतोगुणी बन जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट इज इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्शन इटसेल्फ। जब भी आप कुछ भी कार्य करो, हमेशा अपने एट द बैक ऑफ द माइंड आप इस चीज को ध्यान में रखो कि इसके पीछे मेरे भाव क्या है। मुझे बहुत हाई पैकेज अर्न करना है, भाव क्या है? भाव ये है कि मैं एक अच्छी लाइफ जी सकूं, मेरी फैमिली एक अच्छी लाइफ जी सके, मेरे पेरेंट्स को मैं सुख दे पाऊं जो उन्हें कभी ना मिल पाया, और जब मैं बहुत अच्छा कुछ करने लगूं तो मैं सोसाइटी के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करूं। ये मेरा इंटेंशन है, कि मेरा इंटेंशन ये है कि भाई मैं उसको दिखा दूं कि देखो मैं कितना बेटर हूं, मैं तुमसे कितना ज्यादा वो हूं, मैं उसे एक लेसन टीच कर सकूं। मेरे ये भाव है, मेरे भाव क्या है? इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन action itself. So whenever you are doing anything, just check at the level of intention. Second, focus on your karmas and on not on the results of karmas, because results are blessings of God. कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हमेशा फोकस कहाँ रखो? कर्म पर, रिजल्ट्स पर नहीं। क्योंकि अगर कर्म अच्छे होंगे तो रिजल्ट्स तो अच्छा होना ही है। Nobody in the world can stop you.
देयर विल बी टाइम्स जब शायद जो रिजल्ट आपने सोचा होगा वो नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि विथ योर लिमिटेड माइंड you thought of a very small result for yourself, but the universe wants to gift you with something much bigger, much better, which is amazing for your life, जो आपको बाद में जाके पता चलेगा, उस टाइम पे नहीं पता चलेगा। तो रिजल्ट तो हमें मिलेगा ही, लेकिन जरूरी नहीं आपके चॉइस का रिजल्ट मिले, बिकॉज आपकी चॉइस फेल हो सकती है, यूनिवर्स की चॉइस नहीं फेल हो सकती। आई जस्ट शेयर माई ओन लाइफ एक्सपीरियंस। व्हेन आई वाज लाइक ऑलमोस्ट योर एज, I was appearing for my IIM exam and I didn't do well, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं बहुत सैड हो गई थी, बहुत सैड हो गई थी। I just felt that my world has come to an end because I thought कि like I cleared my BTech, already a job with CTS with a very good package, but I wanted to study further. I wanted to do my MBA और मेरा नहीं एडमिशन हुआ IIMs में and was very sad. And then immediately like you know I took GMAT और मैंने तुरंत GMAT दिया and there I scored really well. I got like in fact I got 94 percentile and I got admission in Lancaster University in US in UK and I went there. तो जब and when I was going there I was like I always thought that this is like you know मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ भाई बिकॉज आई कुडंट गेट थ्रू आईएम्स और मैं बस कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ बट व्हेन आई वेंट देयर देन आई रियलाइज दैट it couldn't have been better because when I went there and got that exposure, that international exposure, and learned so much about life. Management was just a very small thing, MBA was a very small thing. वो तो मैं कहीं से भी कर लेती थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, बट मैं वो जाके वहां पे जो सीखी और आज मैं जो हूं, the whole credit goes to that that 1 year made my life. सो व्हाट आई मीन टू से इज मैंने बहुत कर्म किए, बहुत मेहनत की, बहुत अच्छी पढ़ाई की, बट मैंने जो सोचा था कि मुझे आईएम में एडमिशन चाहिए वो मुझे नहीं मिला। तो उस समय मुझे लगा कि ओ माय गॉड माय लाइफ इज वेस्ट, बट कुछ और हुआ। एंड नाउ व्हेन आई रेड इन रेट्रोस्पेक्ट व्हेन आई सी आई फील आई वाज मच बेटर, आई वाज मच बेटर। शायद मैं आईएम्स में भी जाके उतना अच्छा नहीं सीख पाती थी लाइफ के बारे में जितना मैंने यूके जाके सीखा। सो so never focus on फल because the moment you start focusing on फल क्या होता है, आप अटक जाते हो, आपकी कर्म की क्वालिटी गड़बड़ हो जाती है। बिकॉज जैसे हम फल पर फोकस करने लग जाते हैं तो क्या होता है, हम रिजल्ट से बिल्कुल ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। हम सोचते क्या होगा अगर रिजल्ट बराबर नहीं आया तो, क्या होगा अगर मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया तो, क्या होगा अगर मेरा प्लेसमेंट नहीं हो पाया तो, क्या होगा अगर मुझे इस तरह का पैकेज नहीं मिल पाया तो। सो क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या करता है, हमारे क्वालिटी ऑफ एफर्ट्स को डिस्टर्ब कर देता है। और वहीं अगर हम एफर्ट्स को अच्छे से करते जाएं, अगर बीज डाला है तो पेड़ तो निकलेगा ही और उससे फल तो मिलेंगे ही। यस और नो? बीज डाला है तो फल तो मिलेंगे ही, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कि रह जाएंगे ऐसे ही? मिलेंगे ही। लेकिन लेकिन अगर बीज डाल के मैं बार बार उस बीज को खोद खोद के चेक करती रहूं तो उस बीज को मैं ग्रो करने दूंगी? नहीं ग्रो करने दूंगी, वो बीज वहीं के वहीं मर के खत्म हो जाएगा। So if you keep on focusing on your results, you get paranoid, you get so overwhelmed, you get so stressed out. Forget about results. Focus, focus. मुझे एग्जाम देना, एग्जाम पे रिजल्ट जो आएगा वो आएगा। रिजल्ट इज एनीवेज नॉट इन योर हैंड। ज्यादा सोच लोगे तो रिजल्ट बेटर हो जाएगा क्या? कुछ बेटर नहीं होगा, इनफैक्ट खराब ही होगा। रिजल्ट इज नेवर इन योर हैंड। What is in your hand is your karmas. So work hard, work hard, work hard. That is the only mantra of success. Result आना ही है, result आना ही है। Nobody can stop you. And then एक बार रिजल्ट आ गया तो फिर हमें क्या करना है? We need to maintain equanimity, मतलब संभाव। अगर रिजल्ट जैसा मैंने चाहा वैसा मिला तब हम क्या होते हैं? फूल के कुप्पा हो जाते हैं, अहंकार से भर जाते हैं। एंड फिर अगेन हम अपना वी गो इनटू द डूम, बिकॉज लाइफ तो वहां खत्म नहीं हुई है, हमें और आगे बढ़ना है।
तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देते। और वहीं अगर रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं मिला, जैसा कि मैंने बताया, इफ यू वर्क वेरी हार्ड और रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं मिला, दैट मीन्स यूनिवर्स वांट्स टू गिफ्ट यू विद समथिंग बेटर, something better is in store for you, but that time we don't realize it, and what we go into deep depression, and again we are putting us to failure. So what we need to do is, irrespective of whatever the result is, हमारे choice का है या नहीं है, सक्सेस है या फेलियर है, हमें क्या करना है, हमें संभाव मेंटेन करना है, हमें इक्विनैमिटी से मेंटेन करनी है, विच इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। व्हाट आई सेड, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज मेंटेनिंग इनर एंड आउटर इक्विनैमिटी, राइट? सो कर्म योग gives you a freedom of choice at the beginning, at the middle, and at the end. How? At the beginning, हमारा इंटेंशन, किस इंटेंशन से हम इस काम को कर रहे हैं, दैट इज द सीड। तो इफ यू वांट अ गुड क्वालिटी सीड, योर इंटेंशन should be good. Then at the middle, am I focusing on the karmas, or am I focusing on the result of the karmas, on the fruits? So this is middle, मतलब इंटेंशन इज द सीड, एंड मिडिल क्या है, उस सीड को जो मैंने डाला उसको न्यूट्रिशन देना। तो क्या मैं उसको खोद खोद के खराब कर रहा हूँ, कि मैं उसको एकदम शांति से रह के उसमें खाद पानी सनलाइट सब दे के उसको ग्रो करने के लिए समय दे रहा हूँ? सो दैट इज द मिडिल। एंड व्हाट इज द एंड? द एंड इज संभाव। जो भी फ्रूट मुझे मिला, चाहे मैंगो मिला चाहे ऑरेंज मिला, जो भी मिला, ऑरेंज है तो मैं भी उसके खटमिट स्वाद से हैप्पी हूँ, मैंगो है तो मैं भी उसके जूसी जूसी फीलिंग से हैप्पी हूँ। वॉट एवर फ्रूट आई गेट इन लाइफ, दैट फ्रूट मुझे सहर्ष स्वीकार है, आई एम हैप्पी विथ इट, बिकॉज आई नो माई इंटेंशंस वर प्योर, माई जर्नी वॉज द बेस्ट, so universe is going to bless me with the best. I just need to wait for the right time. Are you with me on this? Quickly let me know so that we move on. Did you understand the concept of karma yoga, the rules of karma yoga? Because these are very important and you need to live it every day. In Gita, Shri Krishna Bhagwan said, Arjuna, योगस्त कुरु कर्माणि, यानी हर क्षण हर पल योग की स्थिति में बने रहो। तो आप कैसे योग की स्थिति में बने रहोगे? ऐसे ही जो भी आप काम कर रहे हो उसके इंटेंशन को चेक करो, प्योर है कि नहीं है। जो भी कर्म कर रहे हो ध्यान दो, मैं फल को लेके बहुत ज्यादा अटैच्ड हो रहा हूं कि मैं कर्म पे फोकस कर रहा हूं। और जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो आपके अंदर संभाव रहता है कि अच्छा होने पे आप एकदम फूल जाते हो और खराब होने पर आप एकदम पचक जाते हो। What happens? Just check yourself. मानी हर क्षण हो। Now there's some paradox. What are those paradox? Number one, a lot of people think that सारे फसाद की जड़ क्या है? कर्म है। तो मैं क्या करूं? कर्म को ही त्याग दूं। और सबसे इजी वे है क्या है कर्म को त्यागने का? संन्यास ले लेना, छोड़ दो। अचानक से पाओगे मैम मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ आपके स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के सेशन से, तो मैं सोच रहा हूँ इतने पचड़े में ही दुनिया के क्यों पढ़ूं, छोड़ो संन्यास ले लेता हूँ, खत्म काम, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नो, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। You are not allowed to do that. This is against the law of karmas. संन्यास लेने का उन्हीं को अधिकार है जिन्होंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर दी है, पूरी कर दी। और आपने तो अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी ही शुरू नहीं की है, लेनी ही शुरू नहीं की है। जर्नी इज वेरी लॉन्ग फॉर यू माय डियर, you have to walk a long path, you have to follow these path, and when you'll reach a stage where you have taken good care of your parents, you have taken good care of your family, your kids are all well settled, they are doing very good, and then you feel that yes, I have achieved enough, now let me go to the Himalayas, or let me go to some Rishikesh, or maybe let me go to like Kaaba and all those places.
or let me go to the golden temple and start serving the poor and start taking all these things. Yes, then you're allowed to do that. Not now. You're not allowed to take sannyas. You're not allowed to give up karmas. You're allowed to, you can, according to the law of karmas, you have to give up what? The fruits, the results of karmas, but you cannot give up the karmas itself. Now, we don't get minded by karmas, but by the expectation of results, both victory and defeat. So, give up your expectations towards the result. So, what we need to give up? हमें कर्म give up नहीं करना है. हमें, can you hear me? I just got a message saying that I'm not audible. Quickly let me know. Yes, you can hear me. Wonderful. So हमें क्या करना है? हमें कर्म को नहीं गिव अप करना है. हमें गिव अप करना है हमारे एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट को, फ्रूट्स को गिव अप करना है, राइट? And then another very important thing, we are only a medium and not the ultimate doer. बिकॉज क्या होता है, जैसे हम अपने आप को डूअर समझ लेते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. एक तो हम बहुत टेंशन और स्ट्रेस में आ जाते हैं. ओ माय गॉड, अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, एक ही ये. और दूसरा, अगर हम कुछ अच्छा काम कर लेते हैं तो लगता है हो ये तो मैंने किया, हम भूल जाते एकदम. और दोनों ही सिचुएशन खराब है. जब हम अपने आप को इस तरह से ओवरवेलम कर लेते हैं कि ओ माय गॉड मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, व्हिच इज वेरी किलिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम विद इन. एंड एट द सेम टाइम जब हम फुल के कुप्पा हो गए अहंकार से, ईगो से, देन ऑल्सो वी आर किलिंग आवरसेल्व्स. रिमेंबर, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. You're only being a medium. Ultimate doer is He sitting up there in the form of Allah, in the form of God, in the form of Bhagwan. He is sitting up there. What you are doing is just following His instructions. Be blessed that He chose you to follow His instructions. Feel, feel totally blessed about it. Right? Feel totally blessed about it. It's a blessing that He chose you. You're not the doer. So don't act like a doer. The moment you start acting like a doer, you'll get into that stress thing. And you will feel, oh my God, I get overwhelmed. नहीं, अब doer हो ही नहीं. Enjoy करो life को. बॉस को हमेशा टेंशन होती है, एम्प्लॉय को टेंशन नहीं होता उतना, क्योंकि एम्प्लॉय को पता है भाई मुझे सैलरी तो मिलनी है, कंपनी के प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, मुझे तो सैलरी मिलनी है. टेंशन बॉस को होती है, राइट? तो बॉस वो है, हम एम्प्लॉयज हैं, तो हमें टेंशन नहीं करना. हाँ, बट एम्प्लॉय को बॉस के एक्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ता है. सो ही इज अ मीडियम of executing that action. So we are all being a medium in executing the action, but we are not the boss. Boss is somebody else. And then renouncing action is not inaction, which I just shared some time before. Renouncing action is not inaction. Action को त्यागना is not inaction. We have to do action. कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा. We have no choice. Now, सतोगुनी कर्म. What are सतोगुनी कर्म जो हमें एक्चुअल में करना है? सबसे पहले सांसारिक कर्म. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आप बोलोगे कि मैम, आप बोलते हो कि भाई बिहेव नाइस विद अदर्स, ऐसा करो वैसा करो, बट हम जब when we work in the real world, then we need to shout at people. We need to टेल देम कि भाई ऐसा करो वैसा करो. कभी डांटना भी पड़ना पड़ता है, कभी चीखना भी पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, कभी उन्हें पनिश भी करना पड़ता है. हमारे ही बच्चे, वी नीड टू पनिश देम इफ दे आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, एंड इफ यू डोंट डू, तब वो गड़बड़ हो जाएगा. देन व्हाट इज दैट? देन दैट इज तमोगुणी कर्म और रजोगुणी कर्म और सतोगुणी कर्म. व्हाट काइंड ऑफ कर्म इज दैट? when out of our responsibility we have to do something which is not correct, tab kya hai? Then that is action in relaxation, seeing non-action in action, inner awareness and outside activity. What is that? What is that? You are a boss and you got an employee, और वो एम्प्लॉय बराबर काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा? उसको डांटना पड़ेगा.
थ्रेटन करना होगा कि भाई अगर एक काम बराबर नहीं हुआ तो कल से तेरी जॉब नहीं, आना ही नहीं, चेहरा ही नहीं दिखाना, या पनिश करना पड़ेगा कि भाई मैं तुम्हारी सैलरी काट दूंगा, ब्ला 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 ब्ला। बट ऊपर से आप उसको ये सब बोल रहे हो, डीप इनसाइड आप क्या हो? क्या डीप इनसाइड भी आप फुल ऑफ एंगर हो एंड आपके अंदर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, कि डीप इनसाइड आपके चित्त एकदम ब्लिस के स्टेट में है, पीसफुल है, शांत है? ये डिसाइड करेगा कि कर्म कैसा है। अगर जब आप बाहर से भी गुस्सा कर रहे हो तो अंदर भी आपके चित्त में तूफान चालू है, देन दिस इज अ तमोगुणी कर्म। बट आप जब बाहर से गुस्सा कर रहे हो बट डीप इनसाइड यू इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस, you're just doing it at the surface because you want to put that person in action, because अगर आप वो नहीं करोगे तो इंसान नहीं करेगा। पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, जैसे आप लोग के पेरेंट्स कई बार आपको डांटते होंगे, तो इसका मतलब है आधे बैड पेरेंट्स? आपकी मम्मा अगर आपको डांटती है, अगर आप सुबह बराबर उठते नहीं हो, अगर आप कॉलेज बराबर जाते नहीं हो, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं और वो आपको डांटती है, तो इज शी बीइंग अ तमोगुणी मदर? No, not at all. She'll become a tamoguni mother if she imbibes that stress inside her as well. तो तमोगुण उनके अंदर चला जाएगा. But if at the surface she's just telling you so that you get on target, उनके intentions एकदम प्योर हैं. अगर एज अ बॉस आपके इंटेंशंस प्योर है कि आप अपने एम्प्लॉय को सिर्फ इसलिए डांट रहे हो ताकि वो थोड़ा सा अलर्ट हो, वो इंप्रूव करे अपने वर्क में, राइट? And deep inside you're in a state of bliss, then this is not tamogun at all, then this is satogun. Then this is satogun because आपका intention pure है and inside आप एकदम bliss के state में हो, it is satogun. And then आध्यात्मिक कर्म में भी अकर्म है। कैसा? when we are meditating, तो बाहर से क्या लग रहा है हमें कि क्या है, बस ऐसे आंख बंद करके बैठ गए, है ना? बाहर से लग रहा है तो कुछ नहीं कर रहा, बट डीप इनसाइड व्हाट यू आर डूइंग अमेजिंग थिंग्स, यू आर डूइंग विजुअलाइजेशंस, यू आर डूइंग एफर्मेशंस, you are getting into that alpha mode, you are touching your chit, you're going deep inside and you are facing your real I. बाहर से देख के लग रहा है तो कुछ नहीं कर रहा, but deep inside you are doing the best karmas possible. So this is action in stillness, right? सो अगर इन शॉर्ट में बताऊं, अगर आपको समझना है कि कौन से कर्म अच्छे हैं और कौन से कर्म खराब हैं, तो वो कर्म अच्छे हैं जो कर्म करने के बाद भी आपको एक स्टेट ऑफ ब्लिस की फीलिंग होती है, आपकी आत्मा को शांति फील होता है, आपकी आत्मा एक सच्चित आनंद की अवस्था में रहती है, वो कर्म अच्छे हैं, सतोगुणी है। और वो कर्म तमोगुणी है जब आपको सत्यचित आनंद की फीलिंग नहीं होती, जो कर्म करके आपकी आत्मा आपको कचोटती है। कर तो लेते हो, मजाक तो उड़ा दिया उसका, नीचा तो उसको दिखा दिया, बट डीप इनसाइड यू नो दैट दिस वाज नॉट डन। अब जितना भी अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर लो, अरे उस दिन उसने इसलिए आज मैंने बदला दिया, just a logical mind playing games with you. But deep inside, your real eye knows that what you did was not correct. It was with a malified intention. It disturbed your internal bliss, your internal equanimity. Are you done? Are you done? So this was all about कर्म योग. समझ में आया आपको? कर्म योग बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इतना ज्यादा समय कर्म योग पे क्यों लगाया? बाकी सब मैं फटाफट एक एक स्लाइड में फिनिश कर दूंगी, क्योंकि अभी आपकी लाइफ शुरू हुई है, हर क्षण हर पल आपको कर्म करना है, एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ कर्म, द बेस्ट कर्म पॉसिबल, क्योंकि जब आप बेस्ट कर्म करोगे ना, तो हर कर्म का एक एक्शन, एक रिएक्शन होता है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब आप बेस्ट कर्म का एक्शन करोगे तो रिजल्ट में आपको रिटर्न में बेस्ट रिएक्शन ही मिलेगा, और आपकी लाइफ एक्सपोनेंशियली ग्रो करती जाएगी, और आप कहाँ पहुंचोगे आप भी रियलाइज नहीं करोगे। मे बी सम years back when we meet you might tell me that ma'am you don't know me but I was there in that session and ये सब मैंने सुना था, and from that day I started following these things, and then I I started just going spirally upwards
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया मेरा, मैं कहाँ था और कहाँ पहुंच गया, मैंने जो ड्रीम देखा था वो ड्रीम भी अब छोटी हो गई है, आई हैव अचीव समथिंग मच बिगर, आई रियली वांट दिस फॉर ऑल ऑफ यू. सो दिस वाज अबाउट कर्म योग, एंड देन वी मूव ऑन टू भक्ति योग. व्हाट इज भक्ति योग? Bhakti Yoga has got 4 stages: Kam, Prem, Bhakti, and Sakshatkar. Through tough words, but let me explain you. What is Kam? Kam is lust. Kam is lust. तो जब सेंस प्लेजर को प्राप्त करने के उद्देश्य से जब हम कुछ करते हैं, दैट इज काम, दैट इज काम. बट जैसे ही काम में हम सैक्रिफाइस डाल देते हैं, कुछ त्याग की भावना को डाल देते हैं, तो वो काम क्या बन जाता है? प्रेम बन जाता है. वो काम जो लस्टफुल फीलिंग थी, वो क्या बन जाता है? प्रेम बन जाता है. वी मूव फ्रॉम सेल्फिशनेस. काम क्या था? लस्ट की फीलिंग, सेंस प्लेजर्स की फीलिंग, दैट वाज अ सेल्फिश फीलिंग. जब हम उसमें त्याग डालते हैं तो वी मूव ऑन टू सेल्फलेस लव, अनकंडीशनल लव. और वो कैसे पॉसिबल है? वो 3D से पॉसिबल है. जब हम दान करते हैं, कोई भी फॉर्म ऑफ दान, जैसे मेरे पास ज्ञान है तो मैं क्या कर रही हूँ, आज आप लोग के साथ ज्ञान का दान कर रही हूँ. भगवान ने मुझे ब्लेस किया with so much of knowledge, and I took this thing ki I'll take out some time from my daily routine and share this knowledge with the world, so that the world also gets benefited with it. So मैं ज्ञान का दान कर रही हूँ. वैसे ही अगर मेरे पास मनी है तो मैं रुपए का दान कर सकती हूँ, मैं फूड का दान कर सकती हूँ, बहुत प्रकार के दान होते हैं. वॉट एवर, बेसिकली हमारे पास जो चीज दूसरों से ज्यादा है, हमें उसे शेयर करनी चाहिए. क्योंकि क्यों हमारे पास दूसरे से वो ज्यादा है? वो इसलिए है क्योंकि भगवान ने सोचा कि जब मैं अपने इस बच्चे को दूसरों से ज्यादा दूंगा तो वो दूसरों के साथ शेयरिंग करेगा. शेयर करने के पर्पज से मैं ज्यादा मिला था भाई, जो सबको इक्वल दे देते थे, बट किसी को ज्यादा ज्ञान दे दिया, किसी को ज्यादा पैसा दे दिया, किसी को ज्यादा बल दे दिया, किसी को ज्यादा फूड दे दिया, है ना? तो हमें चैरिटी करनी चाहिए, एनी फॉर्म ऑफ चैरिटी. सो रिमेंबर, एवरी डे यू शुड डू सम फॉर्म ऑफ चैरिटी. दया, कंपैशन, हमें कंपैशन दिखाना है. वी शुड बी कंपैशनेट टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग. इस भगवान की जो पूरी क्रिएशन है, पूरी क्रिएशन, सबके प्रति हमें कंपैशनेट होना चाहिए. एंड दमा, सेल्फ रेस्ट्रेन्ड. जो चीजें हमें सेंस प्लेजर देती है, उसको हमको धीरे 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 कम करते जाना है. बिकॉज ये सेंस प्लेजर ही हमें बॉडी कॉन्शियसनेस में अटका के रखता है, हमारे अंदर काम की फीलिंग को का बढ़ावा देता है. तो हमें काम से कहाँ जाना है? प्रेम की तरफ जाना है. सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस की तरफ जाना है. वो तभी आएगा जब हम सेल्फ रेस्ट्रेन करेंगे. राइट नाउ, नेक्स्ट स्टेप इज प्रेम से हमें भक्ति की तरफ जाना है. तो कैसे आएगा भक्ति? जब हम सरेंडर करेंगे, समर्पण करेंगे. नो, सरेंडर किसके प्रति? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरेंडर किसके प्रति? तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, तुम जिसके प्रति सरेंडर करते हो, समर्पित होते हो, तुम उसके जैसे बन जाते हो. तो हमारे जितने भी टेररिस्ट हैं, आपको नहीं लगता उनमें भक्ति भावना बहुत हाई है? दे आर सो डिवोटेड, सो कमिटेड. बट प्रॉब्लम एक है. क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि वे रॉन्ग एनर्जीज की तरफ समर्पित हैं. वे रॉन्ग एनर्जीज, बहुत समर्पित हैं वो. उन्होंने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया है. इनफैक्ट मैंने इतना समर्पण कहीं नहीं देखा कि वो अपना जीवन तक खत्म कर देते, अपनी फैमिली को भी त्याग देते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स बन जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं. वाई? बिकॉज इनमें समर्पण की भावना बहुत हाई है. लेकिन they have surrendered themselves to the wrong energy.
So to whom we should surrender to? We should surrender to the highest consciousness. हमें वो जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिन्हें हम नाना प्रकार के नाम से जानते हैं, हमें उनके प्रति समर्पित रहना है. सरेंडर टू द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस. एंड देन भक्ति से हमको फाइनल कहां पहुंचना है? साक्षात्कार. व्हाट इज साक्षात्कार? साक्षात्कार इज रियल आईजेशन. मेरा जो रियल आई है, मेरा जो रियल सेल्फ है, मुझे उसको जानना है. सो जब मैं भक्ति में अपने ईगो को त्याग देता हूं, मैं जब भक्ति में अपने ईगो को त्याग देता हूं, तब मैं कहां पहुंचता हूं? तब मैं कहां पहुंचता हूं? तब मैं रियल आई के पास में पहुंचता हूं. तो अहंकार को त्यागना है हमें. राइट? सो व्हेन वी गिव अप दैट आई, वी फेस रियल आई. जो गीता में अर्जुन जी ने कहा था ना, मुझे आपके विराट स्वरूप का दर्शन करना है, तो एक्चुअल में वो विराट स्वरूप क्या था? वो हमारा ही रियल आई था. तो हम कब उस विराट स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं? जब हम अपने छोटे स्मॉल ईगो को जब त्यागते हैं, जब हम जो कलर्ड ग्लास का चश्मा पहनते हैं, उस चश्मे को हम उतार के फेंक देते हैं और हम दुनिया को वैसा ही देखते हैं जैसे कि दुनिया है. हम जब ईगो का चश्मा नहीं पहनते, तब हम रियल आई को पहचानते हैं. और जब हम इस रियल आई को पहचानते हैं, तब हमें साक्षात्कार होता है. So clear? Is Bhakti Yoga clear to all of you? So now we move on to the next yoga, which is ज्ञान योग. तो हमने कर्म योग समझा, हमने भक्ति योग समझा. भक्ति योग only said one thing. वो क्या था? कि हमें लस्ट से अनकंडीशनल लव की तरफ जाना है, अनकंडीशनल लव से हमें डिवोशन या भक्ति की तरफ जाना है, और डिवोशन से हमें रियलाइजेशन करना है. वी नीड टू रीच टू द रियल आई. So when we surrender ourselves to the highest powers, to the divine powers, then only we know what we really are. और तभी हम उस रियल आई को पहचान पाते हैं. अब ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग पातंजलि योग सूत्र में ऋषि पातंजलि ने कहा, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा. कि रूट कोज ऑफ ऑल क्लेशा. व्हाट इज क्लेशा? क्लेशा इज स्ट्रेस. ये भी आप लोग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आपके लाइफ में ना एवरीडे स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा. बिकॉज आप स्टूडेंट लाइफ से आप स्टेप इन करोगे इन दैट आउटसाइड वर्ल्ड वेयर यू नीड टू गेट अ जॉब, यू टू परफॉर्म वेरी गुड इन योर जॉब. एवरी डे देयर इज सो मच ऑफ rat race happening, so much of competition happening, and then you need to get married, you need to have kids, you need to take care of your family. Parents were taking care of you till now, now you need to start care responsibilities, and every day you will feel your stress level is increasing. So do you want stress to increase or do you want bliss to increase? क्या बढ़ना है आपका? स्ट्रेस बढ़ना है कि ब्लिस बढ़ना है? क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? स्ट्रेस की ब्लिस? ब्लिस, सत्यचित आनंद की अवस्था बढ़नी है, स्ट्रेस नहीं बढ़ना है. और स्ट्रेस क्यों बढ़े? स्ट्रेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अस, ब्लिस इज पार्ट ऑफ अस. जब हम उस ब्लिस से दूर हो जाते हैं तो स्ट्रेस आता है. तो रूट कॉज ऑफ ऑल स्ट्रेस इज क्या? अविद्या, अज्ञानता. तो अज्ञानता, और अज्ञानता कैसी? अज्ञानता रियल आई की अज्ञानता. मैं कौन हूं? मेरा क्या पर्पस है इस लाइफ का? मुझे किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए? इफ आई एम स्टक इन लाइफ, देन व्हाट इज द वे फॉर मी? अगर अगर ज्ञान है तो क्या होगा? तो मुझे कभी स्ट्रेस नहीं आएगा.
बट अगर मुझे अविद्या है, अगर मुझे ये सब चीजों का ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा? मैं हमेशा दूसरों को मारने काटने में लगा रहूंगा, दूसरे को नीचे दिखाने में लगा रहूंगा, हमेशा मैं रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करता जाऊंगा, हमेशा अगर रिजल्ट्स मेरे हिसाब का नहीं आएगा तो मैं स्ट्रेस में जाता रहूंगा। तो ये अविद्या क्या करता है? ये अविद्या पैदा करता है अस्मिता को। व्हाट इज अस्मिता? अस्मिता इज अहंकार। और ये अहंकार क्या क्रिएट करता है? अहंकार बॉडी कॉन्शियसनेस को डेवलप करता है, जिससे राग द्वेष आता है। राग इज अट्रैक्शन, द्वेष इज रिपल्शन। तो हमें क्या चीज के प्रति अट्रैक्शन होता है? जो चीज हमें सेंस प्लेजर्स देते हैं, जो हमें शॉर्ट टर्म सक्सेस एंड हैप्पीनेस देते हैं, हमें उनके प्रति अट्रैक्शन होता है। ड्रिंकिंग, इट गिव मी शॉर्ट टर्म प्लेजर। क्यों? थोड़ा देर ड्रिंक करने के बाद क्या होता है? मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। बट आप ये नहीं देख रहे हो कि थोड़े घंटे बाद क्या होता है। वो हैंगओवर इफेक्ट इज सो टेरिफाइंग। ओ माय गॉड, आई स्टडी इन यूके, आई टू फाइंड संडे मॉर्निंग, बाप रे, बाहर नहीं निकल सकती थी मैं, जगह जगह बॉटल्स के चूरे मिलते थे। सो पथेटिक। एंड जो फ्रेंड्स थे मेरे, वो तो मुझे संडे आफ्टरनून तक तो मिलते ही नहीं थे, क्योंकि हैंगओवर इफेक्ट ही नहीं उनका खत्म होता था। पथेटिक। तो आफ्टर इफेक्ट इज सो बैड, बट उस समय मुझे शॉर्ट टर्म प्लेजर मिल रहा है, सो मुझे राग हो रहा है उसकी तरफ। आई एम एंजॉइंग ड्रिंकिंग, आई एम एंजॉइंग द फीलिंग ऑफ ड्रग्स, स्मोकिंग, ऑल दो स्टफ, ऑल दो स्टफ। एंड मुझे द्वेष क्या चीजों से है? मुझे द्वेष है जो मुझे शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं देता, मुझे उनसे द्वेष है। बिकॉज मुझे लगता है, तो माय गॉड, इतना हार्डवर्क लग रहा है, व्हाई शुड आई डू इट, व्हाट फॉर? आई ऑलवेज फाइंड अ रीजन फॉर नॉट डूइंग इट। सो ये राग द्वेष क्या करता है? अभिनिवेशा, अभिनिवेशा इज गेटिंग इनटू बॉडी कॉन्शियसनेस, फियर ऑफ डेथ। सो रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इज अविद्या, अविद्या, अज्ञानता। सो हमें क्या करना है ज्ञान योगी बनने के लिए? फर्स्ट स्टेप, स्वाध्याय, सीक नॉलेज। वी नीड टू सीक नॉलेज, व्हिच वी आर डूइंग राइट अवे। जो हम अभी कर रहे हैं, वी आर सीकिंग नॉलेज, वी आर इंटरेक्टिंग, वी आर डिस्कसिंग, वी आर लर्निंग। सो वी नीड टू सीक नॉलेज। बट सिर्फ मैंने आपको सब बता दिया, आपने सुन लिया, आप नॉलेजेबल बन गए, इज दैट इनफ? आप क्या ज्ञान योगी बन जाओगे? नो, यू नीड टू प्रैक्टिस इट। मैंने जो कर्म के बारे में आपको इतना बताया, अब हर कर्म करने के पहले प्रैक्टिस इट, कि मेरे इंटेंशन कैसे हैं। प्रैक्टिस कि फोकस मैं कर्म पे लगा रहा हूं कि फल पे लगा रहा हूं। प्रैक्टिस रिजल्ट आने पर मेरे फेवरेबल रिजल्ट आया तो मैं भूल गया, कि मेरा अनफेवरेबल रिजल्ट आया तो मैं खुश हो गया, कि मैं समभाव में जीता गया। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, राइट? सो अभ्यास। और फिर अभ्यास करते करते क्या होगा? वो आपका आचरण बन जाएगा। इट विल बिकम द वे यू आर, द वे यू आर। यू विल, मतलब फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपको देख के पता चलेगा कि दीज आर द प्रिंसिपल्स यू फॉलो इन योर लाइफ। एंड देन व्हेन यू लिविंग स्टार्ट लिविंग दोस प्रिंसिपल्स, जब वो आपके आचरण में आके पक्का हो जाएगा, तो क्या होगा? फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप इज you become a source of inspiration, you become a source of inspiration। लोग आपके पास आएंगे, इंस्पायर्ड हो जाएंगे। दुखी लोग आके एकदम सेटल्ड फील करेंगे, बोलेंगे पता नहीं क्या है, तेरे पास आता हूं मुझे शांति मिल जाती है। Because your aura has become that powerful, your aura is exuberating with that positive energy. So this is part of Gyan Yoga, that you have to seek knowledge, put it into practice, make it a part of your acharan, your action, and then become a source of inspiration. So three paths we have discussed till now: Karma Yoga, Bhakti Yoga, and this Gyan Yoga. And now we move on to our fourth approach, which is called Raj Yoga. This has been explained by Rishi Patanjali, and it is a beautiful 8-step approach. Very, very beautifully he has explained it. And I really want all of you to focus on it, because
एक एक स्टेप को उन्होंने इतने अच्छे से बताया, और अगर हम ये 8 स्टेप अप्रोच अपने लाइफ में फॉलो कर लेना डिसिप्लिन्ड मैनर, then nobody can stop us from becoming a superstar performer in getting the highest SQ possible. So सबसे पहले क्या, यम, then नियम, then आसन, and then pranayam, pratyahar. And these 5 comprises bahiranga sadhana, outside. And then comes dharana, dhyan, samadhi, and this is antaranga sadhana. Okay, so these are, don't worry about the jargons, I'm going to explain you everything, don't worry. I've got 20 minutes left, and in 20 minutes we're going to cover this Raj Yoga, which is the 4th योग. And these 4 form of योग अगर आप अपने लाइफ में हर क्षण हर पल implement करते गए, then nobody can stop you from your dream life. You become the creator of your own destiny. So we move on to the first step, which is called yam. Yam means restrained, जो चीज निषेध है. So now we want to make ourselves really, really amazing. We want to fill ourselves with the best virtues. हम सारे अमृत से अपने आप को भरना चाहते हैं. तो अगर हम अपने आप को अमृत से भरना चाहते हैं, सपोज एक कटोरे के अंदर हम अमृत को भरना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? भरने के पहले क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप नेचुरली उस कटोरे को हमको क्लीन करना है. वी टू क्लीन दैट बोल, राइट? बिकॉज जब तक वो बोल को हम क्लीन नहीं करेंगे, कुछ भी उसके अंदर में डलेगा वो तो डर्टी हो जाएगा. तो हमें अपने आप को बहुत हाई लेवल तक लेके जाना है. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या करना होना चाहिए? सेल्फ क्लेंजिंग, restraints. Somebody just asked me when I was doing bhakti yoga that, ma'am, what is self restraint? I didn't answer purposely that time because I was waiting for this particular slide to come so that I spend more time and you understand it much better, right? So these are the restraints that we need to follow in our life. First restraint kya hai? Abstention from harming, ahimsa, non-violence. And this harming should be at all the levels, mansa, vacha, karmana, at the level of thought, at the level of words, and at the level of action. हमें हर लेवल पे इंश्योर करना है कि हम किसी को किसी भी प्रकार से हार्म न करें. न सोच के, अगर हम मन में किसी के बारे में खराब सोचते भी है ना, तो वो भी खराब है. और अगर हम मुंह से किसी को कुछ बोल के हर्ट करते हैं तो वो भी गलत है. और नेचुरली हम मारपीट करते हैं, वो तो खराब है ही. सो एट ऑल द 3 लेवल्स वी नीड टू फॉलो अहिंसा. एब्सटेंशन फ्रॉम फॉल्सहुड, सत्यमेव जयते. झूठ हमें शॉर्ट टर्म सक्सेस जरूर दिला सकता है, बट अल्टीमेट सक्सेस हमें सत्य से ही मिलता है, ट्रुथ से ही मिलता है. एंड इट्स वेरी इजी टू फॉलो द पार्ट ऑफ ट्रुथ, बिकॉज ट्रुथ क्या ना, अकेला है, एक है, कोई टेंशन नहीं है. और झूठ क्या है? झूठ का मार्ग अनेक है. थोड़े टाइम बाद आप खुद बॉक डाउन हो जाओगे कि भाई मैं किसको फॉलो करूं, झूठ ही झूठ है, झूठ ही झूठ है, और सत्य एक है. बहुत सिंपल है, सत्य का मार्ग सबसे सिंपल है, एंड वो आपको विक्ट्री की ओर लेके जाता है. इट यू माइट फेस सम शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस, but that's immaterial. Ultimately, you emerge as winner. Abstention from stealing, आस्तेय का पालन करना, यानी जो मेरा नहीं है मुझे उस पर ध्यान नहीं देना. जो मेरा नहीं है मुझे उस पर ध्यान नहीं देना. ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में इनफाइनाइट है. सो इन केस यू वांट समथिंग, सीक फ्रॉम द यूनिवर्स. कल पूरे मटेरियलाइजेशन हमने किया था विजुअलाइजेशन इंफॉर्मेशन के साथ में, माइंड पावर के क्लास में. तो डू दैट एंड अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव. Why take snatch from somebody else? Never do that. कर्म दोष लगेगा, उल्टा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे. Seek from the universe. Abstention from lustful sensuality, brahmacharya. What is brahmacharya? ब्रह्म का आचरण करना, यानी प्योर वे ऑफ लिविंग. जो करेक्ट लाइफस्टाइल है हमें उसको फॉलो करना है, एंड वी ऑल नो व्हाट इज करेक्ट लाइफस्टाइल. नेक्स्ट इज एब्सटेंशन फ्रॉम कवटनेस, अपरिग्रह का पालन करना, नॉन अक्यूमुलेशन.
मुझे जितना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही संचय करना है। अननेसेसरी संचय करके कोई फायदा नहीं है। इट अल्टीमेटली लीड्स टू अनहैप्पीनेस। And when I'm talking about accumulation, then it is accumulation at all levels, at the level of material thing and at the level of thoughts also. So अगर आपने अपने mind में इतनी सारी थॉट्स को स्टोर करके रखा है, किसने कब क्या बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, कब हर्ट किया, क्यों नहीं किया, यू आर जस्ट बॉगिंग योर सेल्फ डाउन। डोंट डू इट। रिलीज, release what you don't need, release what you don't need. Okay, so these are the restraints. Now after the restraints we come to what? Niyam, some discipline जो हमें फॉलो करना है, which if we follow will improve our life. सबसे पहले प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन एट ऑल लेवल्स। बॉडी से तो है ही प्यूरिफिकेशन, बट एट द लेवल ऑफ our words also, at the level of our thoughts also. Because थॉट के लेवल पे इम्प्योरिटी क्या करता है? हमारे इंटेंशंस को इम्प्योर कर देता है। एंड एज वी जस्ट लर्न इन कर्म योग कि अगर हमारे इंटेंशंस इम्प्योर होते हैं तो क्या होगा? वो कर्म क्या हो जाएंगे? तमोगुणी कर्म हो जाएंगे, जो हमें बहुत कार्मिक बैगेज को हमारा बढ़ा देंगे। सो वी नीड टू हैव प्यूरिफिकेशन एट ऑल लेवल्स। कंटेंटमेंट, संतोष, हमारे जीवन में संतोष होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। ऑफ कोर्स वी नीड टू अचीव अ लॉट इन लाइफ, वो तो हमें करना ही है, बट इंटरनल संतोष होना चाहिए। बिकॉज अगर इंटरनल संतोष नहीं होगा तो हम कुछ भी अचीव करेंगे ना, वो हमको डिससेटिस्फैक्शन ही देगा, कभी खुशी नहीं देगा। और इंटरनल अगर संतोष है तो लाइफ में तो हमें आगे बढ़ते ही जाना है। स्काई इज द लिमिट। आज 1 लाख का पैकेज मिला तो कल 10 लाख का हो, 10 लाख से 1 करोड़, 1 से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़, हम बढ़ते ही जाएंगे। बट एट ऑल लेवल्स अंदर में हमारे क्या होगा? एक सेटिस्फैक्शन होगा, तभी एक क्वालिटी लाइफ को हम जी सकेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन, वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन। हमारी जो लाइफस्टाइल है बहुत डिसिप्लिन होनी चाहिए। हमारा उठने का समय, हमारा सोने का समय, हमारे खाने के आइटम्स, क्या खाना है नहीं खाना है। जंक फूड भी खाना है तो उसका भी डिसिप्लिन होना चाहिए कि यस मैं वंस अ वीक खाऊंगा, मैं ट्वाइस अ वीक खाऊंगा। अगर ड्रिंक भी करना है तो उसका भी डिसिप्लिन होना चाहिए कि हाँ भाई मैं सिर्फ फ्राइडे नाइट्स को ही ड्रिंक करूंगा और इतना ही ड्रिंक करूंगा, नॉट मोर देन दैट, कि आई लूज माई सेंसेस, नो। और फिर उस पे भी हमको इम्प्रूवमेंट लेके आना है। मतलब वॉट एवर यू डू, नॉनवेज भी खाना है तो उसका भी आप एक करो कि ठीक है भाई खाना है तो भाई वीक में 1 बार, 2 बार, 3 बार, वॉट एवर। एंड देन कट डाउन, कट डाउन, कट डाउन, कट डाउन। यू वोंट इवन रियलाइज कि वन डे आप कब कहाँ पहुंच गए आपको समझ ही नहीं आएगा। एंड देन स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, एज वी सेड, ज्ञान योग स्वाध्याय, because that will make you a Gyan Yogi. And then devotion to God, Ishwar Paridhana, that will instill Bhakti Yoga in you. So these are the 5 Niyam. Now we move on to the third step, which is Asana, body postures. So the first step, what the first step did? First step, I just received a message that my voice is not clear. Is it audible? Is it clear? Quickly let me know. Quickly. Because I just have like say 10-15 minutes with me. I need to cover these 8 steps. It's very important because tomorrow I want to do interpersonal skills with you. I want to do relationship with you because it's very important. वो topic हमारा करना जरूरी है. So I want to do what I want to finish today. And you can see my PPT as well. Somebody just messaged that the PPT is not visible. You can see my PPT also. You can hear me well. You can see my PPT also. Perfect. So I'll move on. सो फर्स्ट स्टेप से हमने अपनी अपनी क्लेंजिंग की। थर्ड स्टेप से हमने आपको तैयार किया विद दीज नियम, डिसिप्लिन। नाउ थर्ड स्टेप से हम क्या कर रहे हैं? हम अपने अन्नमय कोश को हम मास्टर करेंगे। विल मास्टर आर अन्नमय कोश। अब हम एक एक बॉडी को स्ट्रेंथ करेंगे थ्रू आसनास। नाउ व्हाट इज आसना? स्थिर सुखम आसनम। व्हाट इज दिस? स्थिर सुखम आसनम मतलब स्थिर मतलब एकदम स्टेडी,
सुख मतलब जो हमको आराम दे रहा है. सो डोंट यू फाइंड दिस कॉन्फ्लिक्ट इन दीज टू टर्मिनोलॉजीज? क्या कोई चीज स्थिर भी हो सकती है और सुख भी दे सकती है? Is it possible? There's such a strong conflict over here. But yes, that is what we need to achieve through practice. Through practice, we need to achieve that only. And कैसे हम achieve कर सकते हैं? By relaxation of continued effort and meditation, we can achieve it. तो सबसे पहले क्या होगा? We'll try to sit. For example, मैं आपको बोलूं कि भाई स्थिर बैठो, कुछ नहीं, सुखासन में बैठो, पांव मोड़ के ही बैठो. ज्यादा मैं आपको पद्मासन और सिद्धासन वगैरह के बारे में नहीं बोल रही हूँ. सिर्फ नॉर्मल सुखासन में ही बैठो. तो शुरू में क्या होगा? सिर्फ स्थिर बैठने में ही हमें बहुत तकलीफ जाएगी. फिर धीरे 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 हम क्या होंगे? हम स्थिर से चीर होंगे. हम उसमें रिलैक्स होते जाएंगे. और फिर जब हम रिलैक्स होते जाएंगे तो धीरे 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 वो हमको सुख देने लगेगा. So from effort, we move to effortless effort. This is what we need to achieve in life. क्योंकि क्या हो गया, हमारी बॉडी जो है ना, होनी चाहिए थी हमारी स्लेव, बट हम अपने बॉडी के स्लेव बन गए हैं. हमारा बॉडी बोलता हो मैं तो ऐसे नहीं बैठ सकता. इतने यंग हैं आप लोग सब, बट अगर मैं बोल दूं कि विदाउट बैक सपोर्ट बैठो, तो शायद 5 मिनट बैठने में भी आप लोगों से काफी लोगों के पीठ दुखने लग जाएंगी. यू आर लाइक ओ माय गॉड, मैं चेयर के बिना नहीं बैठ सकता, मैं जमीन में नहीं बैठ सकता, इट्स सो अनकंफर्टेबल, माय बैक स्टार्ट्स पेनिंग एंड ब्ला 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 ब्ला. एंड वी वांट टू डू ऑल दोस थिंग्स व्हिच गिव्स प्लेजर टू आवर बॉडी. सो अगर आप अपने बॉडी को ही नहीं कंट्रोल कर सकते, तो आप दुनिया को क्या खाक कंट्रोल करोगे? सो द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम योर बॉडी इटसेल्फ. सबसे पहले हमको अपने बॉडी को तैयार करना पड़ेगा कि एटलीस्ट हमारी बॉडी एक पोस्चर में स्थिर होकर हैप्पीली बैठ सकती है कि नहीं बैठ सकती. स्थिर बैठे हो लेकिन एकदम अंदर में बिल्कुल परेशानी है, इट वोंट वर्क. स्थिर होके आपको हैप्पी होना होगा. द पोस्चर शुड गिव यू हैप्पीनेस. So that is what is important. That is possible when you move from effort to effortless effort. And it is said that if you can maintain any of your asana for 3 hours happily, sukham ke saath, then you achieve asana siddhi. These are all like, at a different level, but I just thought I'll share with you. But yes, this is very important that you should dictate over your body. Your Annamay Kosh should be your slave. You should be the master of your Annamaya Kosh. But problem is your Annamaya Kosh, your physical body, is actually your master. It dictates you. Until the time that happens, you can't be master of anybody. If you really want to become a master and run the world, be a boss, then first become a boss of your own body. Then think about becoming boss of somebody else, right? Then next, understanding prana. On a day 3, we discussed in great depth about our pranamaya kosha, where we said that life force energy flows through our body in the nadis, right? So ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, ये लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे पूरे बॉडी में फ्लो करती है. एंड देयर आर दीज 5 टाइप्स. Actually, all the life force energy is the same, but depending on their direction and the organs they affect, they have been divided. They're divided as Pran, Udan, Vyan, Saman, and Apan. Pran is the respiratory life force energy which takes care of our respiration. Udan is the energy that flows from inward to outward. It takes care of our nervous system. Dhyan is the brown line that you see running through our body. It takes care of our circulation. Saman is the spiral that is near your stomach. It takes care of your digestion. And Apan is the downward energy which takes care of your excretion. So these are the 5 pranas that flow in your body, and these pranas are actually controlling your different organs, which we had discussed on day 3, right? And we can regulate these pranas while breathing, and this is called pranayam. So the 4th step of Patanjali Yoga Sutra, Ashtang Yoga, is pranayam. First was yam,
second was niyam, third was asan, that was mastering your physical body. Fourth is pranayam, which is mastering your second body, that is etheric body. Okay, so through pranayam, you master your etheric body. Now, this we had understood in great details on day 3, so I won't go into it. I have quite less time now. We found that we had 72,000 nadis. We talked about aura. We talked about these 3 important nadis, Ida, Pingla, Sushumna, and at the intersection lies the chakras, which takes the energy from the Brahmand. Now, if we want that our pranamaya kosha, our etheric body remains very, very powerful, then we need to do pranayam, because by doing pranayam, we increase the life force energies in our body. And when we do pranayam, like many people ask me कि मैम खाली breathing करने से हमारी तबीयत कैसे ठीक हो सकती है? वो इसलिए ठीक हो सकती है because just a while back I showed you कि कैसे हमारे ये 5 types की life force energy flow कर रही है, जो हमारे different body parts को affect कर रही है. तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है, हमारी इसकी एनर्जीज जो है वो रेगुलेट होती है, बैलेंस्ड होती है, और वो जब इन ऑर्गन्स में जाती है तो हमारे ऑर्गन्स हील हो जाते हैं. वी आर डिस्कस्ड इन ग्रेट डेप्थ ऑन डे 3. फॉलो माय डे 3 लेक्चर, यू विल अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ कैन यू कंट्रोल योर माइंड थ्रू प्राणायाम? वो आप कैसे कर सकते हो? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, जब आपको जोर से गुस्सा आता है, have you ever noticed आपकी breathing कैसे हो जाती है? You can quickly type on the chat box and let me know when you're breathing, when you are like very, very angry, how's your breath? How's your breath? Is it yeah, Tanya just shared, it's very fast. It's very fast and it's very shallow. Fast and shallow. आप जोर जोर से breath लेना चालू कर देते हो. And when you're very relaxed, very happy, very blissful, then how's your breath? How's your breath? Quickly tell me on chat box. जब एकदम relaxed होते हो तो कैसी आपकी breath होती है? Quickly. It is very normal. It is slow. Slow होती है, normal होती है, right? Right. So that means हमारा जो माइंड में क्या हमारी इमोशंस चल रही हैं, एंगर के इमोशन चल रहे हैं कि रिलैक्सेशन के इमोशन चल रहे हैं, उसका हमारा ब्रीदिंग से कोई कनेक्शन है? Yes or no? So mind and prana are two sides of the same coin. जो हमारा ब्रेथ है वो माइंड को रेगुलेट कर रहा है, एट द सेम टाइम हमारा माइंड हमारे ब्रेथ को रेगुलेट कर रहा है. जैसे गुस्सा आया, ब्रेथ इंक्रीज हो गई, जैसे हम शांत सतचित हो गए, हमारा ब्रेथ डिक्रीज हो गया. तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं. कैसे रिवर्स कर सकते हैं? अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें क्या करना है? क्या करना है? स्टार्ट टेकिंग what? What? Quickly in the chat box. Start taking deep breaths. Very good. वेरी गुड. स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ्स. तो जब भी आप देख रहे कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, आप बहुत डिप्रेशन में आ रहे हो, आप एंग्री हो रहे हो, मतलब एनी इमोशन विच इज नेगेटिव, द मोमेंट यू स्विच टू डीप ब्रीदिंग, your emotions start getting better. Yes or no? So breath is a bridge between mind and body. Irregularities in breath is caused due to disturbance in mind, like jerky breath with pause. कई बार ऐसा होता है कि गुस्सा गुस्सा लगता है ना, अचानक से एकदम स्तब्ध हो जाते हैं, पॉज हो जाता है, हम सांस नहीं ले पाते हैं, हल्की एकदम हो जाती है, या ऐसे करके सांस लेना शुरू कर देते हैं. राइट और रॉन्ग? Right or wrong? Whenever we move on to any emotions which are negative, which are away from our state of bliss, what happens? Our breath becomes very, very irregular. So what we should do? We should, through pranayam, we should calm our mind by systematic breathing. And one very important thing I want to share with you. Do you think how many years you will be living is fixed for you? क्या फिक्स है? आप कब तक जिंदा रहोगे वो आपके लिए फिक्स है कि नहीं है? यस और नो? क्विकली ऑन द चैट बॉक्स मुझे बताइए. आपका मरने का तारीख डिसाइडेड है कि नहीं डिसाइडेड है? somebody said no, lot of you are saying no, then क्या डिसाइडेड है? तस्नीम says yes, rest says no.
So those who are saying no, तो अगर मेरा number of years decided ना, जन्म और मृत्यु फिक्स होती है, जन्म और मृत्यु फिक्स होती है, तो अगर मृत्यु फिक्स नहीं है, मेरे मृत्यु का डेट फिक्स नहीं है, तो क्या फिक्स है? क्या फिक्स है? यस, मेनी ऑफ यू आर करेक्ट, फ्लूक से ही करेक्ट हो गए, बट यू आर करेक्ट। हमारा डेथ का डेट फिक्स नहीं है, हम कितने नंबर ऑफ इयर्स जिंदा होंगे वो फिक्स नहीं है। क्या फिक्स है? हम कितना ब्रेथ लेंगे, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज फिक्स्ड। How many breaths we are going to take, that is fixed. How many years we are going to live, is it not fixed? So we decide our number of years. अगर आप हम हमेशा नेगेटिव इमोशन में रहते हैं और बहुत शैलो एंड फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, तो क्या हो रहा है? हम फटाफट फटाफट अपने नंबर ऑफ ब्रेथ्स को खत्म करते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ इयर्स कम होता जा रहा है। और वहीं when we are always in a state of bliss, very happy, relaxed, calm, peaceful, in touch with our soul, when we take deep breaths, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने नंबर ऑफ इयर्स को बढ़ा रहे हैं। So it is also in your hand. How many years you will live is totally in your hands. If you breathe deeply, you increase the number of years on your life. If you breathe fast and shallow, you decrease the number of years. Done? Done? Clear? So I won't go in the detail of pranayam, that I want कि आप सब नेट पे जाके चेक कर लो, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, these are beautiful pranayam that you should do on a regular basis. I'll just share yogic breathing over here, that what is the correct form of breathing. जो चलो हम अगर डेली बेसिस में कर भी ना पाए, तो हमें क्या करना चाहिए? एटलीस्ट सम टाइम, मॉर्निंग में जब हम उठे, रात में सोने जा रहे हो, या दिन में काम करते करते बीच में जब टाइम मिले, वी शुड डू दिस. What is this? सबसे पहले abdominal breathing. What is abdominal breathing? Abdominal breathing is when we should breathe. तो जब हम सांस ले रहे हैं, तो हमारा जो पेट है बाहर आना चाहिए कि अंदर जाना चाहिए? जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए. So I want all of you to put a hand on your stomach and take a deep breath and see your stomach bloating out. Now release. See your stomach going in. Now, thoracic breathing. Put a hand on your chest. Now, when you breathe in, your chest should expand. So feel the expansion. And when you breathe out, it should contract. Now, we'll move on to clavicular breathing. What? Put a hand on your shoulders over here like this. When you breathe, your shoulders should, stretch. And when you breathe out, it should contract. So just do with me. Got it? So now we'll do full yogic breathing, where abdominal, thoracic and clavicular, तीनों एक साथ. Put one hand on your stomach, one hand on your chest, and now breathe with me. Got it? मैंने फटाफट किया because time is running, but आपको टेक्निक आ गई है. So I really want, जब भी आपके emotions negative हो, जब भी you feel that you're going out of control, you want your mind to get back to the normal state, you want to again get back to your blissful self, then resort to yogic breathing. And then there are a lot of pranayam, Kapalbhati, Vastrika, Anulom Vilom, beautiful pranayams are there. Start doing them if you're not doing. Then we'll come to the fifth step. I'll be minutes, 10 more minutes. I hope it's okay with you, because then I'll be able to finish what I want to finish today. And tomorrow I really want to do healthy relationship, because it's about interpersonal skills, and that is something that you really need in your life, because now you're going to interact with a lot of people. So it's important that you're able to build good relationship with them, right? So we'll do that tomorrow, because if we do that tomorrow, then we'll be able to cover all aspects of PQ, EQ, SQ, everything will cover. So pratyahar is the fifth step. First step was yam, second niyam, third yogasan, fourth pranayam, fifth pratyahar. So with yogasan we took care of the physical body, with pranayam we took care of the etheric body. Now with pratyahar we are taking care of the
mind body. So what happens in pratyahar? In pratyahar, we disengage ourselves from the senses. So when we move on, then what happens? Slowly, जब हम और आगे बढ़ते जाते हैं, then a withdrawal happens. तब हम सेंस प्लेजर से, राग द्वेष से हम दूर होते जाते हैं, हम बॉडी कॉन्शियसनेस से दूर होते जाते हैं, एंड वी मूव ऑन टू सोल कॉन्शियसनेस. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. प्रत्याहार इज अ नेचुरल प्रोसेस. व्हेन वी मूव ऑन दिस पाथ, जब आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम को फॉलो करते जाते हो, तो क्या होगा? अपने आप जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उससे प्लेजर आपको उतना नहीं मिलेगा. You won't be too attracted or fascinated by the pleasures of sense organs which you are currently. Tab you'll get pleasure. In fact, then pleasure is a very small word. You'll get bliss from bigger things in life, right? So this was pratyahar, which is the fifth step. And now comes dharana. What is dharana? Dharana is getting focused. So first step is chanchalta. Our mind is very chanchal. कहते हैं ना, मन बहुत चंचल है. क्यों चंचल है? क्योंकि वो एक ही टाइम पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स के बारे में सोच रहा है. अभी ये सेशन के बारे में भी सोच रहा है, इसके पहले कोई और मैम का लेक्चर हुआ था, उसके बारे में सोचा, शाम को फ्रेंड्स के साथ में कुछ मूवी पे जाना है, वो सोच रहे हैं, कल मॉर्निंग में कुछ और प्लान आउट है, वो सोच रहे हैं. मल्टीपल थिंग्स, मम्मी ने कुछ बोला है, ब्रदर ने कुछ किया है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के बारे में वी आर थिंकिंग एट द सेम टाइम. सो दिस इज चंचलता. फ्रॉम चंचलता वी नीड टू मूव ऑन टू एकाग्रता. What is ekagrata? Ekagrata is still we are thinking a lot of things, but on a single subject. On single subject, we are thinking about multiple thoughts. तो अभी इसी के बारे में कि मैम पतंजलि योग सूत्र के बारे में बता रही हैं, बट मेरे पापा ने भी मेरे को ऐसे बारे में कुछ बताया था. इनफैक्ट जब मैं 10th ग्रेड में था, तो टीचर भी मुझे कुछ इस बारे में बता रही थी. तो इसी सब्जेक्ट के बारे में आपको मल्टीपल थॉट्स आ रहे. दैट इज एकाग्रता. And then from ekagrata, we move on to the stage of dharana, which is single subject, single thought. You are all focused to what I am saying. आप बिल्कुल glued हो जो मैं कह रही हूं उसके बारे में, और उसी का चिंतन आपके अंदर में कंटिन्यूसली चल रहा है. दैट इज द स्टेज ऑफ dharana. So from chanchalta we need to move on to ekagrata. From ekagrata we need to move on to the stage of dharana, because then only we can get focused, and when we are focused we get the results. We get the results only when we are focused at the stage of dharana. And how we can develop dharana in us? We can develop dharana in us through tratak. Through tratak, focused. So we can do tratak by focusing on a lamp, or we can do tratak by pasting a picture on the wall and focusing on a bindu. We can do tratak of a bal surya also. वो मैंने आपको डे 3 चक्रास में बताया था कि जो उगता हुआ सूर्य होता है, उनको सन गेजिंग करना इज रियली रियली गुड. तो वी कैन डू tratak to उगता हुआ सूर्य. So when we focus ourselves, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है. चंचलता से एकाग्रता, एकाग्रता से धारणा के स्टेज में पहुंचते हैं. तो बट धारणा में क्या हो रहा है? हमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है. फोकस्ड एफर्ट लग रहा है. इट इज नॉट एफर्टलेस. वी नीड टू पुट इन एफर्ट. नाउ व्हेन धारणा बिकम्स एफर्टलेस, इट बिकम्स ध्यान. When dharana becomes effortless, it becomes dhyan. ध्यान इज मार्क्ड बाय एफर्टलेस एफर्ट. धारणा और ध्यान में कोई डिफरेंस नहीं है. एक डिफरेंस है, विच इज द मेजर डिफरेंस. ध्यान में क्या हो रहा है? हम अपने आप को बार बार बोल रहे हैं, ध्यान रखो, इसी पर फोकस करो, इसी पर फोकस करो, इसी पर फोकस करो, इसी. और जब हम वो करते करते, प्रैक्टिस करते 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 रीच अ स्टेज व्हेन this effort becomes effortless effort, and we enter the stage of dhyan. And then finally, when we can remain in the state of dhyan over a long period of time, then we achieve samadhi, which is the final stage. हम इस ध्यान के स्टेज में भी कुछ देर तक ही रह पाते हैं, बट जब
हम धीरे धीरे एफर्टलेस एफर्ट के स्टेट को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते, बढ़ाते जाते हैं, and we enter into a stage where it is for eternity. We move into samadhi. In samadhi, we are united with the divine consciousness, and that is the stage of complete yoga. जो लीज लाइन की मैं बात बोल रही थी वो अब भी स्टैब्लिश हो सकती है. गॉट इट? अभी तक जो भी था वो लाइन ब्रेक हो सकती है बीच बीच में, बीच बीच में, बीच बीच में. लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं और हमारी लाइन ब्रेक हो रही है. बट व्हेन वी रीच द लेवल ऑफ समाधि, वी put a lease line between the finite and the infinite. And then what happens? What happens? We achieve complete realization. We know who we really are. We know about our powers. And the moment we know about our powers, देन हमारे अंदर ऐसे ऐसे अमेजिंग एप्लीकेशंस हैं जिनको हम इंस्टॉल किए नहीं हैं. उनको जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं, देन वी आर अनबीटेबल, राइट? Samadhi is the highest state of mental concentration and can be experienced in uniting with the highest reality while still in the body. Some people have myth कि समाधि तभी आ सकती है जब हम शरीर छोड़ते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं. No, as a living being also you can achieve this stage. But yes, you need to work a lot on yourself. बहुत मेहनत लगेगी. But yes, you should move on this path. Every day should become better than what. जब मैं उठूं और अपने आप को पाऊं कि मैं कुछ 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 एक माइनर स्टेप, कल से अगर मैं बेहतर हूं, बस आई एम डन, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी. बस ये छोटा छोटा स्टेप मुझे कहाँ लेके चले जाएगा मुझे भी नहीं पता. तो जस्ट फोकस ऑन दिस स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप. बहुत लंबा चौड़ा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है. अपने आप हो जाएगा सब कुछ. नाउ व्हेन यू अचीव दैट, you are in Jnanmay Kosha. Now, what will happen? This Brahmand is going to bless you with amazing powers. Amazing powers. जो चाहो आपको वो मिलेगा. अब आपको डिसाइड करना है कि आप इसको एकदम इसके अंदर बिल्कुल लिप्त होके भोगी की तरह बिल्कुल इसमें जकड़ जाओगे, अहंकार से भर जाओगे कि इसको त्याग करके आगे बढ़ते जाओगे. That you have to decide. That you have to decide. You'll get stuck or self-realize. आप जब भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको बहुत अमेजिंग पावर्स मिलेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके केस में अगर मैं बोलूं, आपको बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा, बहुत अच्छी पैकेज मिल जाएंगी. जॉब ज्वाइन करते ही 6 मंथ्स में आपको प्रमोशन, डबल प्रमोशन मिल जाएगा. आपकी पैकेज डबल ट्रिपल हो जाएगी. दूसरे कंपनी से बहुत ऑफर्स आएंगे. बहुत अच्छा आपको मैच मिल जाएगा, आइडियल मैच, परफेक्ट स्पाउस. आपके लाइफ में सारी चीजें होती जाएंगी. लेकिन हर स्टेप में आपको एक चीज ध्यान देना है कि आप उसमें अटक रहे हो. अटकोगे कैसे? अहंकार आएगा तो अटकोगे, अहंकार आएगा तो अटकोगे. अपने ऊपर बहुत गर्व करने लगोगे तो अटकोगे. अपने आप को के अंदर आप कर्ता भाव लेके आओगे कि भाई आई एम द डूअर, उसकी फीलिंग लाओगे तो अटकोगे. और जहां सरेंडर की भावना होगी कि जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, अल्लाह कर रहे हैं, गॉड कर रहे हैं, एंड आई एम थैंकफुल टुवर्ड्स हिम, और जो अच्छा पाथ इन्होंने मुझे दिखाया मैं उसको फॉलो करता जाऊं, तो क्या होगा? आप सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ में बढ़ते जाओगे. कब ये संसार की चीजों को प्राप्त करते 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 कब आप और आगे बढ़ जाओगे आपको भी पता नहीं चलेगा. सो चॉइस इज योर्स, वेदर विथ ईच what to say victory you get stuck with that victory, or with each victory you just surrendering and blessing and moving on and moving higher and higher ladder. Choice is yours. You need to decide your own path. So increase SQ, just 2 more minutes. I'm ending with my session today. It was actually very vast. मुझे लगा maybe I might need 2 days, but I prayed to God कि please भगवान आज complete हो जाए, because tomorrow I really want to do relationship with you.
एंड गुड, आई कुड डू दैट। तो सोचो एक विक्ट्री हो गई। सो इंक्रीज SQ बाय फॉलोइंग 4S। व्हाट आर द 4S? सेवा। सेवा इज कर्मयोग। कर्मयोग में हमने क्या पाया था कि हमें जो भी काम करना है वो भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है, और जो चीज भगवान के चरणों पे समर्पित होती है वो सेवा होती है। तो हम जो करें, अगर हम कोई एम्प्लॉय भी है कोई ऑर्गेनाइजेशन में, सेवा भाव होना चाहिए कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की सेवा कर रहा हूँ। जहां सेवा भाव होता है ना, वहां पे हम जितने हैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। और जहां पेचेक की बात आती है कि मेरी सैलरी इतनी, 9 to 6 का जॉब, 9 to 6 किया, पेचेक लिया, उसके हिसाब से जितना काम करना है कर दिया, खत्म बात। मेरी जितनी JD थी, जॉब डिस्क्रिप्शन के किया, खत्म किया। तो वो नहीं, मैं जितना दे सकूं अगर मैं उतना दूंगा, पेचेक के बारे में नया सोच के, मैं जितना दे सकता हूं अगर मैं उतना दूंगा, तो पता नहीं मेरा पेचेक कितने टाइम मल्टीप्लाई कर दे जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो हर काम जो मैं करूं एक सेवा भाव से करूं। संकीर्तन, संकीर्तन मीन्स कनेक्टेड रहना उस भगवान के साथ, उनके नाम को जपते रहना। सो संकीर्तन, देन स्वाध्याय, and final sadhana. These are the 4S which are very important to increase our SQ. So it is time to move on from tamas to sat, from annamay to anandmay kosha, from body consciousness to soul consciousness, from stress to bliss. So direction of movement depends on with whom we are attached to, whether we are attached to the worldly powers or we are attached to the higher powers. योग किसके साथ establish कर रहे हैं, उसी पर हर कुछ निर्भर करता है. This I'll take up tomorrow. So with this, I put an end to the session today.